कैसा रहा आपका टूर आमचा? Yeah, Everyone let me please just take. have a seat. Avinash Rachmale, come to the stage. त्यांना ऐकायला गेलं नाही अजून गेला. Mansukh, come here on the stage. This side, sorry. आणि कोण सुटलेश, सायली, वंदना पवारजी. हे भारतीय टेम्पलमध्ये he was president last year. He's from Hyderabad but Marathi. Yeah. Everyone. So we were expecting 75 people, but maybe some couldn't come. But thank you very much for coming. Without you, this was not possible. Vishnuji, thank you for coming from far distance. Where is your family? Okay. Yeah. So we would like to welcome first our chief guest, who is here for giving the speech. I want to invite Avinash Rachmale to have a shawl and flower and welcome him. Take some photos and videos so we can share. But before that, I would like to talk about this flower arrangement, who has done a special job just for our chief guest by Renu Sood. She's in our Dynamic Women's Club. She saw that we are having a speech on Shivaji Maharaj, and her mother was a history teacher, and same my mother was a history teacher. And when she invited us just for a lunch, and when we went to her house, she has a whole blanket of flowers, and she was welcoming Swamiji, and she had some ups and downs in her life. But look at her and the way she has done that job. Because I told her that I forgot to bring the flowers, and then शबरी के गोर होते हैं ना, ऐसे टाइप का मुझे आज लगा उनकी जो सेवा हमारे स्वामी जी के लिए थी. Sorry, without asking you, I spoke. Thank you very much. और आप खड़े लेके नमस्ते बोलो, please. Just please. Yeah. Saili, please come. Who is going to talk? Now Vikram will take over. He is the MC. Just wanted to tell you the SMAP that we have started, Michigan chapter in Michigan. It is about not just Shivaji Maharaj, but we are going to celebrate the victory of all the historical people that they helped us saving our Hindu religion and fought for us for our safety in 400 plus years or 300 plus years ago. So SMAP, we started the chapter and we have many people joining for that. So today you will see some of them. Okay, here, Mansukh. Thank you very much, Hematai, handing the mic to me, and thank you, Professor Namdev Rauji Zadav, for coming to Detroit. I would like to invite Saili ji here to give a brief introduction about Professor Namdev Rauji Zadav. Thank you. Welcome everyone. Thank you for coming on this rainy day. Professor Namdev Rao Jadhav is a descendant of Mother of the Nation, Jijau Sahib, and the founder of International Shivba Srishti Rajgarh. His birthplace is Bandalwadi, Kaladari, Pune. He holds a master's degree in commerce, journalism, and MBA. He is the second person after Swami Vivekananda in over 130 years who is invited for the Parliament of World Religion as a speaker on Hinduism and human rights.
Professor Jadhav has worked as a senior college professor for 5 years and currently serves as the president of Rajmata Jijau Pratishthan. He is also working with Marathi TV channel Star Pravaha Vahini as an advisor for series Shiva Dhanushya and subject matter expert for the series Raja Chhatrapati. I hope many of you might be watching these series. Professor Jadhav has been honored with various prestigious awards including the Shivaji Maharaj Animation Film Award, Chhatrapati Sambhaji Raje Gaurav Award, Shivakranti Award, Maratha Bhushan Award and Shiva Rashtra Bhushan Award. His hobbies include history, research and trekking, and his aim is to propagate and disseminate the character of Chhatrapati Sambhaji Maharaj. Professor Jadhav utilizes various tools to rebuild the history of Marathas, including giving 10,000 lectures, creating 100 video CDs, and producing a movie on Chhatrapati Sambhaji Maharaj along with a series. Currently, he is working on the project of Rajmata Jijau Gyan Mandir to imbibe the same values of Chhatrapati Shivaji Maharaj to the next generation. Please welcome Jadhav ji. विक्रम तुम्ही पण शूट करणार का माझा मोबाईल देतो एक त्यांच्याकडे आहे म्हणजे स्पेअरला एक असावं मी इथे एक लावून ठेवतो. हा ते आता जरा कुठून एका ठिकाणून घेतलं चालतं So Facebook Live. नाही शूट करून ठेवता एक मिनिट Before we start, many of you know there is This one goes- restroom in the back. One एक second, restroom right हे here इथे जातं. and upstairs side above that one and the above one. And then- नाही तुम्ही साईडला If you want to, you So, are एक most minute. welcome to walk quietly, have a cup of असं tea करा. and enjoy the speech because there will be no break in between. So thank you very much and at the end there will be a thank you time. So wait, thank you whatever that time. So please do not leave. Okay. Thank you. I welcome all my brothers and sisters from India, belonging to many languages. Regional differences could be there, but we are here with one single intention, that Vasudhaiva Kutumbakam. India is our motherland and America is our shrine. वो हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी कर्मभूमि है और हम दोनों को उतना ही सम्मान करते हैं जैसे कि हम हमारी माँ को और हमारी मौसी को दोनों को सम्मान करते हैं, उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे. So I was here to deliver the speech in Parliament of World Religion, Chicago. It was very prestigious opportunity for me, and I had lined up with the other programs, and कल और आज और परसों शायद मैं मेम्फिस में होने वाला था, लेकिन हेमाजी राजमाले और राजमाले परिवार का जो मैंने देखा सोशल इंटेंशंस ऑल द थिंग्स, I went up to the airport and again I came back. I left my friend over there that now our directions get separated. So वो हेमा जी और अविनाश जी हैं, उनका प्यार है, उनका सोसाइटी की तरफ जो भी उनका लगाव है, इसकी वजह से मैंने यहाँ रुकना अच्छा पसंद किया और अच्छा लगा कि इतने सारे लोग एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ जुटते हैं. अभी के वक्त में पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है, अमेरिका इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन लोगों को जुटाना बहुत मुश्किल हो गया है. ऐसे वक्त में इतने सारे मामले, इतने सारे लोग जुटना, दैट इटसेल्फ इज ए प्रूफ ऑफ हर सोशल वर्क. नहीं तो आज ऐसा हुआ है कि कोई आदमी मर जाता है ना, तो उसको उठाने के लिए भी 4 आदमी लगते, वो भी नहीं मिलते, इसलिए ट्रॉली बनाई है लोगों ने. डायरेक्टली उसको एम्बुलेंस पे उठा देते हैं, एम्बुलेंस से डायरेक्टली उसको इलेक्ट्रिक जो फेडरल ये रहती है मशीन, उसमें डाल देते हैं. दिस इज हैपनिंग इन इंडिया आल्सो. और वहां पर लोग इसका वो रथ भी बनाते हैं, उसको नाम देते हैं वैकुंठ रथ, मतलब जिसके पीछे कोई नहीं, उसको डायरेक्ट सीधा वैकुंठ. तो व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, हम लोगों से दूर जाते जा रहे हैं. क्या एम्पायर की सब्जेक्ट क्या है, किस लिए होना चाहिए, हम क्या करते हैं जिंदगी में, ऑल दीज थिंग्स कीप्स ए मीनिंग. सो आई एम हियर टू टॉक अबाउट शिवाजी महाराज, हिज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स
and how he got his success in a very short span of time. Yesterday we were there to visit one school. It is a very great school. That is Cranbrook. The school is there, and Himaji's son is a student of that school. From that only I am going to start, because it has some connection with Chhatrapati Shivaji Maharaj. When Chhatrapati Shivaji Maharaj was the age of only 7, he was taken by his father to the Bangalore for the higher studies, and that is in international school itself. Okay, so your education makes a sense that how much you are going to get in your life, what you get, how you get, and how much time you get. That is a matter of your education and your attitude. When I was delivering the lecture in Parliament of All Religion, I was focusing on the 2 factors, that is Chaturvarnyam Maya Sushtam Gunakarma Vibhagashava. That God is saying in Bhagavad Gita that by birth I have given equal right to everyone, but anyone can become extraordinary, anyone can become a special person only by the only 2 factors, that is one is gun and second is karma. Gun means your attitude, that is sattva, raja and tamagun. Okay, so that is your attitude. मैंने ये देखा, कल मैं यहाँ पर गया था हिमाजी के साथ, अपना जनरल मोटर्स का जो हेड ऑफिस है वो देखने गया था. तो वहाँ मैं 2 भारतीय लोगों युवाओं से मिला, एंड आई आस्क्ड देम दैट कैन यू टेक माय वन फोटोग्राफ. तो उन्होंने ऐसा किया. इट्स नॉट ए जॉब ऑफ माइन, आई एम नॉट योर स्लेव, आई एम नॉट योर एम्प्लॉय. ओके, वहीं पर मैंने एक अंग्रेज लेडी को बोला कि कैन यू हैव माय वन फोटोग्राफ. या श्योर. और वो फोटो निकालने के बाद उसने मुझे बोला कि ग्लैड टू हेल्प यू. ये क्या है? इसीलिए वहां के 84 रुपीज यहाँ पे $1 में आ जाते हैं. दिस मेक्स अ सेंस ऑफ एटीट्यूड ओनली, एंड दैट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द गीता. ओके, दैट इज एटीट्यूड एंड योर कर्मा is a basic factor which makes you successful, great successful, and you can be extraordinary also. So why is Shivaji Maharaj is extraordinary in the world? When the entire country was ruled and entire country was set to the fire itself by the Mughal peoples, they used to rob the women, they used to kidnap the women, they used to kill the women, and don't talk about the human beings. मतलब इंसानों के बारे में तो आप खैर ही नहीं कर सकती है. औरंगजेब, जिसने खुद के बाप को मारा, जिसने खुद के भाइयों को मारा, और कितने सारे अपने दोस्तों को भी उसने मौत के घाट उतारा, ऐसे माहौल में हिंदुओं की क्या सिचुएशन थी ये आप समझ सकते हैं. In working in such a situation, it was very difficult, and it was the aspiration of the Jijamata that I should save my country from these all problems. And the Swarajya, that is Maratha Empire, that creation was only with the intention of restoring the respect of the women. That was not to create the empire. That was not to create that I want to be a king of a particular empire or something like that. I want to create a dynasty, or I want to leave some kind of a legacy behind me. That was not intention. Because this is a preaching by the one mother that what the females, what the women are facing the problem in the country, and how as a son of the soil, I am using a right word for him, that is son of soil, irrespective of caste, color, creed and religion, he used to fight only for the respect of the women. Because that was a preaching of the Rajmata Jijau to the Shivaji Maharaj, that in our Hindu religion, in our India, we had only 2 great wars. That is, one is Ramayana and second is Mahabharata, and those 2 wars are not for property. These are not for conquering the country. These 2, Mahabharata and Ramayana, both wars took place only to respect the women, restore the women, and punish the people who disrespect the women. And that's why I like your concept of women's club. Whatever kind of the help I can do to your women's club across America and the world, I am here with you. Okay, you are my big sister, and I am younger brother to you. Okay, so that is a respect that is given to the women and females. That is a reflection in the life of Shivaji Maharaj. Everywhere we can see that. So what was the preaching and teaching, and what was the practicing by the Rajmata Jijau to make a Chhatrapati Shivaji Maharaj to a Chhatrapati Shivaji Maharaj? Okay, हम ही किसी को जन्म दिए, हमें भी किसी ने जन्म दिया, लेकिन everybody is not going to be Shivaji.
when a name is to be given to the child, we have to be very careful. Nowadays it has become very simple that people buy a book from the store, 5,000 new names to the boy child and girl child. अभी 5,000 लोगों के नाम आप लेके आते हैं और उसके बाद कुछ मिलता नहीं है, तो फिर आप दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं. बाप का नाम रवि है, माँ का नाम वीना है, तो हो गया रवीना. ऐसे अभी जो नाम कभी सुने भी नहीं थे हमने, ऐसे कितने सारे नाम डेव्हलप हो गए, बिकॉज पीपल आर कन्फ्युज व्हॉट अ नेम शुड बी गिवन टू द चाइल्ड. ओके, आणि तसंही नावं ठेवायला लोक तयारच असतात, त्यामुळे आपल्यालाच आपली नावं ठेवून घ्यायची सवय लावली पाहिजे. नाव तुम्ही काय ठेवा, लोक नावं ठेवणारच आहेत, म्हणून लोकांनी नावं ठेवायच्या अगोदर आपण आपलं नाव ठेवून घ्यायचं असतं. ओके, हा. I was not a Swami, I am not a Swami, but when I met one person at Chicago airport, he was a professor from the IIT Roorkee. And my friend introduced me that he is a Professor Namdev Jadhav and he has come to the Parliament of World Religion. So he said, no, Professor is a very small post as compared to the Swamiji, you are my Swami. So he is the first person who called me the Swami. And afterwards my friend, Dr. Manish Tripathi, he is a double MBA PhD and he is a Pandit from Kashi. He used to introduce everyone me that meet him. He is a Swami from the India. मैंने बोला अरे भाई ऐसा क्यों इंट्रोड्यूस करा रहे हो तुम? बोले नहीं सर, आप जिधर भाषण करने के लिए आए हैं ना, वो स्वामी लोग का ही काम है, वो प्रोफेसर को नहीं बुलाते. तो आफ्टर विवेकानंद यू आर देयर, तो इट इज अ डिग्निफाइड पोस्ट फॉर यू, सो यू शुड नॉट बी शाय टू बी कॉल्ड एज ए स्वामी. तो ये एक्सीडेंटली आई एम ए स्वामी ना, क्योंकि मेरा इतना कोई स्पिरिचुअली स्टडी नहीं है कि या तो मैं इतना ज्यादा उसमें स्टडी नहीं, आई एम हिस्टोरियन, सो आई नो अबाउट द हिस्ट्री, और आई एम नॉट दैट मच वाइज, okay, as you think. And in English, a wise is a person who knows that he is not a wise. So, teaching, preaching of the Jidao to the Shivaji Maharaj. What was the preaching? I got shocked when I studied about all the things, that at the age of 12 only, Chhatrapati Shivaji Maharaj has taken the 42 degrees. So that is caliber, that is a teaching. At the age of 12, getting the 42 degrees is not a small task. Including the first 3 subjects were the Shruti, Smruti and Puranas. That is Ved, Shastra and Puran. If you know all these things, then only you are going to create an empire. He was aware with the 4 languages. Mother tongue Marathi, Modi, Kannada, Farsi and Hindi. And his son, Chhatrapati Sambhaji Maharaj, he was aware of the 16 languages. So we should be familiar with the many languages to be a successful person. That was the preaching of the Jidao to the Shivaji Maharaj. And that's why जब वो दिल्ली में गए थे, तो औरंगजेब के साथ जब उनका पंगा हुआ, तो उन्होंने उनको जो हिंदी में जो झाड़ा है ना, वो कोई पीछे वाला बता नहीं सकता है. From all across the globe, the people were there to celebrate the 50th birth anniversary of the Aurangzeb. But the way in which he treated the Chhatrapati Shivaji Maharaj, nobody has the daring or guts to say that I am being insulted over here. वो डेरिंग शिवाजी महाराज में थे, और सारी दुनिया ने वो टाइम देखा कि औरंगजेब के दरबार में जाके उसको भी ललकारने वाला कोई तो एक है, और वहां से शिवाजी महाराज दुनिया को मालूम पड़ते. So sometimes we have to take a radical decisions also, and the result was what? For 96 days, 95 days he was in the cage of the Aurangzeb. He was captured by the Aurangzeb, but then also he escaped from that. Why he escaped from that? How he escaped from that? That is a one subject taught to him in the childhood. शत्रूच्या गराडातून कसं सुटायचं हा सुद्धा एक विषय होता. अगर दुश्मन आपको घेर ले तो उस दुश्मन के घेरे से कैसे बाहर निकलना, ये भी उनको एक सब्जेक्ट था. When in Hindu dharma or in India, it was a taboo. अगर आप समुद्र को लांघेंगे, if you are going to cross the ocean, you will be directly in the hell. That was the case. Up to 1893, a Parliament of World Religion has twice sent the letters to all 4 Shankaracharyas, but they denied to attend the Parliament only because of this statement. समुद्रातून गेलो तर आपला धर्म संपेल, आणि कोलंबसने अख्ख्या जगात धर्म पसरवला समुद्रातून येऊन. काय बोंबलायचं. But when Swami Vivekananda came to know about all these things, although he was not invited by the Parliament,
त्यांना निमंत्रण नव्हतं, उनको निमंत्रण नहीं था. But he was a son of the soil and he was knowing that if I will be going and I will be speaking from that stage, that is going to change the situation of my country. तो वो यहाँ आए, बड़ी मुश्किल के साथ आए, काफी उन्होंने झेला और बड़ी मुश्किल के साथ. He was nominated by the professor Wright. He was from the Harvard University. Swami Vivekananda was not appreciated by any Indian person when he was alive. वो जब तक जिंदा थे किसी भारतीय ने उनकी एप्रिसिएशन नहीं की है. इसलिए मेरे लेक्चर के वो स्पीच में पहला उनका एक फोटो मैंने डाला है कि एटलीस्ट आई एम देयर टू रिमेंबर यू एंड आई एम योर चेला. You are the first person, I am the second person, so you are my guru and I am your chela. And after this I am going to spread the thoughts of Swami Vivekananda across the globe again. You know. So my subject was, हम लोग किस पे बात कर रहे थे? औरंगजेब के से कैसे निकलोगे? ये एक सब्जेक्ट था. और औरंगजेब के दरबार में उन्होंने जिस हिम्मत से बोला उसके बारे में बात करें. समुद्राच्या पलीकडे जायचं. You know, in a fraction of minutes only, our directions do get changed. I know. You know, the subject was the same, hall is the same, and what I speak, I know. Okay, but what you understand and what you take the message, that is the difference. Okay, and that is happening in all religions. You know, बाइबल में क्या लिखा है और बताने वाला क्या बताता है. कुरान में क्या लिखा है, बताने वाला क्या बताता है. वेद में क्या लिखा है और बताने वाला क्या बताता है. ये सब मामला है. और सारे religious books are not in the language which is the language of the common people, and that creates a complication. You know, so the subject which was taught to him, that how to get escape from the enemy's siege. अगर आप घेरे में गिर गए किसी के तो वहां से कैसे बाहर निकलेंगे. एंड दिस इज नॉट ए वन टाइम एक्सीडेंटली. Many times he has proved that I can cross all these things. When he was seized by that Pratapgarh fort that was seized by the Afzal Khan, that time also he did the same thing. When a Panara fort that was seized by that Siddhi Johar, that time also he got escaped from that. Okay, so that was a subject for him. No other parents were having that vision that which subject should be taught to our children. That Shivaji Maharaj's father and mother were too brilliant, you know, that if you want to make your child a king, definitely what other people are teaching to their child, you should not teach that. You should teach what other parents do not teach. That is exceptional education should be given, and you should have the foresight. You should have some vision that what is going to be happen. Okay, why India used to get defeated by the Mughals, handful of British peoples. You must have seen a 300 picture film that when the king of the Sparta with his friend is supposed to face a great enemy, that is maybe millions of people, enemies are going to there. उस समय वो राजा, स्पार्टा का राजा उसके दोस्त को पूछता है कि भाई तुम लड़ेंगे हमारे साथ. तो हाँ बोले हाँ हम तो आएंगे मदद करने के लिए. वहां तक आते हैं, लेकिन वो जब स्पार्टा का राजा पूछता है कि भाई देख सामने लाख सवा लाख है और हम लोग 4-5 हजार ही मारे जाने वाले, ज्यादा चांस नहीं है. तो जो दूसरा राजा है वो इस तरीके से बात करता है. तो स्पार्टा का राजा बोलता है अगर तुमको भरोसा नहीं है तो यू कैन लिव फ्रॉम हियर. बाजार गुडग्यांची फौज शत्रूचा सामना करू शकत नाही. जब वो राजा ने अपने साथियों से पूछा कि भाई तुम कौन कौन है सिपाही, कोई बोला मैं सुतार हूं, कोई बोला मैं चर्मकार हूं, कोई बोला मैं किसान हूं, कोई बोला मैं ये हूं फलाना हूं. People were talking about their caste. And then when King Leonard asked his army, only 300 people were there with him. He asked them, what is your caste? What is your religion? Tell me. एक ही जवाब उनसे पास आया, we are the Spartan and Sparta and Sparta. And that is the same feeling is with Chhatrapati Shivaji Maharaj army. That is, we are the Marathas, we are Marathas and we are the Marathas. And that Marathas includes Brahmin, Vaishya, farmers and people from all caste, and that's why he was able to save the nation from the Mughals. When we were divided,
That's why only the Mughal invaded the India and they ruled the India. And that was the vision given by the father and mother of Shivaji Maharaj, that if we are going to unite it, all these people, इसलिए अमेरिका का नाम यूनाइटेड स्टेट है. They are united. 50 states are united. हमारे पास 32 स्टेट्स है, सबके अपने अपने मारामारी चल रही है. बॉर्डर के ऊपर से चल रही है, लैंग्वेज के ऊपर से चल रही है, पार्टी के ऊपर से चल रही है. अभी मणिपुर में क्या है, एक ही देश एक ही स्टेट, लेकिन 3 कास्ट के अंदर जो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तैयार हुआ है, वो समझते समझते मुश्किल में आ रहे हैं हम लोग. एंड दैट इज गोइंग टू be very difficult for other people also, because all trains, planes and the education system, everything is going to be disturbed by all these things. So what is to be taught to the child? It's very important. So Shivaji Maharaj was not king by the birth. He is a king by his earnings, by sufferings, by his sacrifice and all things. So 42 subjects were taught to him, and the one subject was that how to cross the river. When our religion was not permitting, you should not go in the ocean. That time, in the 1657, he hired 400 Portuguese people to make the navy. And that's why Chhatrapati Shivaji Maharaj is not only a father of Indian Navy, at the same time he is a father of the merchant navy. That time his ships used to go to that Muscat, Dubai, and even some countries of the Europe. He used to export. That is because the education that was given to him. And the last 42nd subject was Avdhan. Avdhana means focus. That you should have a focus on your job. Now what is the problem of all childs, all families in the world, only losing the focus, and that is only because of mobile. We want to do something like that, immediately some messages to come, pop up, we dismiss. Every day we are losing our focus, we are losing our concentration. I am talking about 2023, and the subject is taught in the year 1643. 400 साल पहले. क्या एक माँ बाप सोच सकते हैं कि ये भी एक प्रॉब्लम आ सकता है? फोकस शुड बी देयर. और फोकस का एग्जांपल देंगे तो आप तो हक्का बक्का रह जाएंगे कि फोकस इसको बोलते हैं. क्या फोकस किसको बोलते हैं? When Shivaji Maharaj went to the Agra, who should ask for the protection? Shivaji Maharaj or Aurangzeb? राजधानी किसकी है? कैपिटल इज बिलोंग टू औरंगजेब, आर्मी औरंगजेब, रेड फोर्ट औरंगजेब, and who is to get protection? Aurangzeb. Because of what? Because he was knowing that if a person can cut a hand of my uncle, who was surrounded by the 1,25,000 army, definitely he can do some kind of the juggling, some kind of the jadoo, magic, and he can kill me. 6 लाख की फौज मुंह की उसने खुद को बचाने के लिए. इसको बोलते हैं एजुकेशन. कौन किससे प्रोटेक्शन मांगना चाहिए? तो ये एजुकेशन मायने रखता है. दिस इज ओनली फोकस. औरंगजेब ने 6 लाख लोगों के बीच में उनको सीज करके रखा, फिर भी he fly like an eagle. Nobody knows how he fly because of focus. हमारा प्रॉब्लम क्या है? अगल बगल में कौन क्या कर रहा है इसके ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान है. That's why we are losing the focus. WhatsApp is having the one feature that is called as status, and that status is what? अगल बगल में लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान है. कोई स्टेटस रखता है कि मैं होटल में गया, इधर उधर खाना खाया, तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है. हम भी दूसरे दिन किसी होटल में जाते हैं, उससे बड़ी थाली बड़ा बिल उसमें ठोक देते हैं. भाई हम भी तुमसे कम नहीं है. ऐसे करते करते वी आर सैक्रिफाइसिंग आवर हैप्पीनेस, जॉय एंड एवरीथिंग. अगर किसी ने ऐसा डाला ना व्हाट्सएप पे थाली बिल का फोटो, इमीडिएटली आप रिएक्ट होना चाहिए कि भाई अच्छा है थाली, कल आते हैं आपके पास, बिल भरने के लिए तैयार रहो. देखो फिर दूसरे दिन डालता है क्या वो. लेकिन हम लोग ऐसे जेलसी में जी रहे, क्या मतलब है इसका? और क्या कर रहे हैं हम? शिवाजी महाराज ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आई एम द किंग. His intention was to give employment to the people. Whenever and wherever he was asked that what is the intention of your empire, why you want to create this Swarajya,
So he used to say that Raites potas lavne aahe. I want to give employment to my people. कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हिंदू एम्पायर, मराठा एम्पायर, उन्होंने खुद नहीं कहा कभी. ये तो हम कह रहे हैं क्योंकि ही बिलोंग टू आवर नेशन, ही बिलोंग टू आवर रिलीजन, ही बिलोंग टू आवर स्टेट, सो वी गिव ए डिफरेंट नेम्स टू हिम. बट उनका इंटेंशन क्या था? एक राइटेस पोटास लावने हैं, एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल एंड रिस्टोरिंग द रिस्पेक्ट ऑफ द वुमेन. एंड दिस इज अ टीचिंग, प्रीचिंग बाय हिज मदर, and that's why he was a very great person, and every great person is a grateful person. जिसमें ग्रेटिट्यूड नहीं है, सिर्फ एटीट्यूड है, ऐसा कोई भी आदमी दुनिया में बड़ा नहीं हुआ. और युगो पुरुष वही होता है, युगो पुरुष वही होता है जो युगो पुरुष नहीं होता है. सिंपल है. इफ वी आर लिविंग विथ युगो, वी कैनॉट मेक ए युग. हम लोग किंग कौन बनता है? जिसमें लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का एटीट्यूड है. इफ वी सॉल्व द पीपल ऑफ द प्रॉब्लम, richness means what? Becoming rich means what? Solving the problems of the people, helping the people, automatically person becomes rich. And if somebody says that I am a poor, I do not generate a money, I do not get a job, means what? He is not serving himself also. जो खुद की भी नहीं मदद कर सकता है वही गरीब है, और जो दूसरों की मदद कर सकता है वही एक अमीर है. इसलिए हम अमीर होके यहां पर ये भाषण बोल रहे हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है. आप लोगों के पास टाइम नहीं है, दुनिया का सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है. दूसरों को छोड़िए, वाइफ के लिए टाइम नहीं, बच्चों के लिए टाइम नहीं, माँ बाप के लिए टाइम नहीं. बच्चे हॉस्टल में, माँ बाप वृद्धाश्रम में, तो क्या कमा रहे हैं? व्हाट वी आर अर्निंग एंड फॉर हूम? जो टीचिंग ऑफ द शिवाजी महाराज by the Rajmata Jijau, that you should get a success but not by cheating the people. You can take the people with you. शिवाजी महाराज का एक स्टेटमेंट था जब उन्होंने अफजल खान को मारा. कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि ये गलत है, आपने उसको मारा ऐसे ऐसे. तो शिवाजी महाराज का स्टेटमेंट था कि मेरी जिंदगी में मैंने किसी को अगर धोखा दिया है तो ऐसा बताओ, और अगर किसी ने मुझे धोखा दिया है और वो जिंदा बचा है वो भी बताओ. जर मी कोणाला आयुष्यात फसवलं असेल तर ते मला दाखवून द्या, आणि जर मला कोणी फसवलं असेल तर तो जिवंत असेल तर तेही दाखवून द्या. तो दिस इज क्लियर कट. जिसने दोस्ती किया उसका उन्होंने दोस्ती निभाया, जिसने दुश्मनी किया उन्होंने वो भी बखूबी निभाया. Isn't it? So I have one example I remember right now. So Afzal Khan was there to kill Shivaji Maharaj, and he has taken the oath in the Darbar of Vijapur that I will kill him or I will seize him alive and I will bring to Darbar. So he seized the Pratapgarh fort. If Shivaji Maharaj would be there in Rajgarh, his family was there, that is the capital, and that will be a welcoming to the enemy, to the core area of the Swarajya. So he himself left the Rajgarh and he went to the Pratapgarh because it was the border of the Swarajya that time. So दुश्मन को बॉर्डर पे ही रोकने के लिए हमें खुद बॉर्डर पे जाना चाहिए, और हम अपने घर में बैठे रहेंगे तो दुश्मन हमारे घर तक आ जाएगा. तो हमें फैसला करना है कि घर में लड़ना है क्या बॉर्डर पे लड़ना है. So he went over there at the Pratapgarh, very high-tech fort. It's very difficult to attack it. Only the option is that we have to wait, that Shivaji Maharaj will come down and we will catch them or we will kill them and that will be over. But when he will come down, when all food grains will be finished, people will be striving from the food, that is they will not be getting the food, then only they can come down. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जिजा माता ने, उनके गुरु लोगों ने ये उनको सिखाया नहीं होगा कि if the fort will be surrounded by the enemies, then what to do? ये सब सिखाया था. इसलिए because of the water and because of the food, no single fort was lost by the Marathas in 100 years. 100 years. धान्य संपले, पाणी संपले म्हणून किल्ला सोडायची वेळ नामुष्की कधीच आलेली नाही. प्रिंसिपल सत्य. कोरोना में हम लोग ने क्या किया? ऐसे तो किया ना कि जहां जहां सप्लाई चाहिए थी वो फटाफट देने की कोशिश की और
उतने सारे लोग बच गए जो टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंचे, जिनको मेडिकल मिली. तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुड बी देयर एंड योर हेल्प शुड रीच टू द पीपल, नीडी पीपल इन द टाइम ओनली. So Shivaji Maharaj was not coming down because he know that 65,000 army is there, they are going to kill him. And Afzal Khan was knowing that if I am going to climb, I am going to climb to the heaven only. ऊपर जाऊंगा तो सीधा ऊपर ही चला जाऊंगा, नीचे आने कोई मतलब ही नहीं है. 4 months the situation was tight like that. He is not coming down and he cannot climb up. That time Jijamata interfered in that, and she lived from the Rajgate and she came to the Pratapgarh directly. And she met Afzal Khan. So it was possibility, highly possible it was for him, Afzal Khan, to seize the Jijau, so that if mother will be seized, a child is going to surrender. She met him, she promised her something, and Afzal Khan got ready. Then Jijamata climbed to the Pratapgarh fort, and Shivaji Maharaj was crying that I have only one mother, and because of your inspiration only I have started all these things. And if you might have seized by the Afzal Khan, I must have to surrender them. This was the situation. Why you interfere in all these things? So that time a mother says, my child, do not forget that I am your mother, and child remains always throughout the life, a child remains a child for the mother. ये कभी नहीं भूलना कि मैं तेरी माँ हूँ, और एक माँ के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है और बच्चा ही उसकी जान रहती है, और बच्चे की जान बचाने के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है. तो मैंने वो किया. तो शिवाजी महाराज ने पूछा, अगर उसने आपको कैद किया होता तो? बोली, तुझे क्या लगता है, जो तू सोच सकता है वो मैं नहीं सोच सकती क्या? The options which you are thinking that I have not thought. बोली, फिर क्या किया था आपने? बोली, मैंने ये स्टडी किया था कि a Vijapur is having the 1 lakh army. Out of that 65,000 is with Afzal Khan here right now. Only 35,000 army is there in Vijapur. Out of that 35, a 24,000 army belongs to your father. So they are in minority now. And if I had sent a letter to your father that I am taking this drastical decision, dynamic decision, I am going to interfere in this, and this could happen, that he can seize me, and something like that can happen. So I have got signal from there. मुझे विजापुर से तुम्हारे पिताजी का सिग्नल मिला है कि अगर अफजल खान आपको कैद करेगा तो आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना. मैं क्या आगे का देख लूंगा. क्या मैसेज होना चाहिए कि आई एम बीइंग सीज्ड बाय द अफजल खान. देन व्हाट विल हैपन? वी हैव 35,000 आर्मी. आउट ऑफ दैट 24,000 बिलोंग्स टू मी. आई विल टेक अपॉइंटमेंट ऑफ द क्वीन. आई वांट टू मीट यू. मैं उनको मिलूंगा और पूरा राज परिवार ही गिरफ्तार कर दूंगा. खत्म बात. हमसे लड़ने वाला कौन है? क्योंकि सारी आर्मी तो हमारी है. ये सारा कैलकुलेशन के बाद वो उनको जाके मिलती है और अफजल खान ये बोलता है that how we can believe in you, that I have the information that Shivaji is very dangerous. If somebody meets him, that is a finish, that is last meeting. उसको मिलना मतलब खत्म होना, ऐसा मैंने सुना है. वो दुश्मनों के बारे में बहुत खतरनाक है. तो a mother says to the Afzal Khan that are you an enemy of him? Because you are working in the same court, you are working in the same darbar. His father is a wazir over there and you are a sardar over there, so you are the friend. आप तो उसके चाचा हो गए. You are not his enemy. By the way, the children are going to make some mistakes. You have to hold his hand and you have to take him to the Vijapur, and you can change the mistakes. You can correct the mistakes. Yes, I can do all these things. Yes, I can do. So, बोले लेकिन हम भरोसा कैसे करेंगे? तो she gives one promise to him. मेरे बच्चे कभी भी दोस्तों पे वार नहीं करते. तो he said, how I can promise? कितना चतुराई से काम करना चाहिए. She had a one purse with her and तुलसी के कुछ पत्ते उसमें थे और खंडोबा का जो भंडारा रहता है ना पीला कलर का, वो भी पाउच में लेके आई थी. A mother can do anything for the child. I am talking about the teachings of the mother, that is management, how a management is to be done. वो उन्होंने निकाला, उसको बेल भंडारा बोलते हैं, और शिव जी के बेल के पत्ते भी थे. वो तीनों निकाले, बोले ये मेरे हाथ में और ये अभी आपके हाथ में. दिस इज प्रॉमिस टू यू दैट माय सन, बोथ सन्स,
डू नॉट अटैक टू द फ्रेंड्स। ये स्टेटमेंट दिया, ये प्रॉमिस दिया, वो बोला यस ओके टुमारो आई एम गोइंग टू मीट शिवाजी, नो प्रॉब्लम, नाउ ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। जिजामाता ऊपर फोर्ट पे गई तो शिवाजी महाराज बोले तो यू हैव प्रॉमिस्ड हिम, देन हाउ आई कैन वर्क। अगेन शिवाजी महाराज was the age of 27 and your mother says him that don't you understand to learn between the lines, you should take a meaning between the lines। शब्दों के बीच का भी कुछ मकसद रहता है, कुछ अर्थ रहता है, मायना रहता है, वो भी तो ढूंढना चाहिए। बोले कैसे? बोले व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड, माय सन्स नेवर चीट टू द फ्रेंड्स। ए अफजल खान इज योर फ्रेंड? नो, ही इज एनिमी, ही इज देयर टू किल मी। अफजल खान तुम्हारा दोस्त है? बोले नहीं, वो तो मेरा दुश्मन है, मारने गया है। तो मैसेज सिंपल है, मेरे बच्चे दोस्तों पे कभी वार नहीं करते, इसका मतलब यह है कि मेरे लड़के दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। Tomorrow you have to go, you have to meet him and you have to finish him. But how it made possible? Behind every successful man, there is some management. And that management is inspiration. We should get a right inspiration from our home itself. नहीं तो दुनिया के आधे लोग क्यों मर गए मालूम क्या? उनकी बीवी ने हमेशा उनको सलाह दी है, ये मत करना है, ये अपने बस की बात नहीं है, ये तो तुम्हारा बस का बात नहीं है। आधे इसमें गए और आधे की माँ ने बोला कि ये भी तुम्हारा काम नहीं है। और जिधर जिधर ये दोनों ने बोला, माँ भी बोल रही है एवरीथिंग इज पॉसिबल टू यू, वाइफ भी बोल रही है यू कैन डू इट, वही लोग जिंदगी में सक्सेस हुए हैं, याद रखना। इसलिए हमारे सारे भगवान जो है ना अपनी औरत के साथ है। नो अवर सिंगल गॉड इज सिंगल गॉड, everybody is married and everybody is with wife. You take example of Shankar, he is with Parvati. You take example of Krishna, he is with Radha or Rukmini. You take example of Ram, he is with Sita. And all our gods are with their mothers also. जिनके पीछे माँ और वाइफ दोनों खड़ी है ना, उनके सामने पूरी दुनिया भी खड़ी रहेगी ना दुश्मन के रूप में, तो भी उसको डिफीट कर देंगे वो। और जिसके पास ये दोनों में से एक भी पेयर कम है ना, वो बेचारे कंफ्यूज चलते, क्या करें क्या करें क्या करें। मेरे घर में जब ऐसा कोई सवाल आता है हेमा जी कि मेरी माँ ने कुछ मेरी वाइफ के खिलाफ बोला या तो मेरी वाइफ ने मेरी माँ के खिलाफ बोला, मैं उल्टा करके बताता हूँ दोनों को। अगर मेरी माँ ने बोला कि उसको बता ऐसा ऐसा, तो मैं उसको बताता हूँ मेरी माँ बोल रही थी कि ऐसी बहू दुनिया में कोई नहीं हो सकती जैसे कि मेरी बहू मिली है। और सास को भी मैं ऐसे ही बताता हूँ, ऐसा मेरे मन का ही बताता हूँ, दोनों को सामने सामने आने का मौका ही नहीं देता ताकि एक दूसरे से पूछे कि सच्चाई क्या है। और अगर अच्छा बोला तो कोई आके पूछता है क्या, अरे आपने मेरे बारे में इतना अच्छा कमेंट क्यों किया। एवरीबडी लाइक्स एप्रिसिएशन, एप्रिशिएट करेंगे, करना चाहिए। हम लोग एप्रिसिएशन में कम है, इसलिए जो लोग खुश रहते हैं ना वो दुनिया को अप्रिशिएट करते रहते हैं, और जो कंजूस रहते हैं ना, अरे क्या लगता है उसमें तो वर्डिंग तो है, सिर्फ आप अच्छे दिख रहे हैं, आप अच्छे बोल रहे हैं, बस बोलना ही तो है। बोलने में भी कंजूसी। शिवाजी महाराज को ये भी सब्जेक्ट है, हाउ टू टॉक टू द पीपल, कम्युनिकेशन स्किल। दैट्स व्हाई ओनली within a span of 35 years he had constructed 111 forts and he conquered 425 forts. Earlier, the speed of getting the forts was 1 fort per year. Then he got experience, then speed was double. After every 6 months, he used to get a fort. The speed was again enhanced. And when he had that Rajabhishek, after that is coronation ceremony held of Shivaji Maharaj. After Prithviraj Chauhan, 400 years later, Shivaji Maharaj is the first king who was coronated by the people. राजाभिषेक होने वाला पृथ्वीराज चौहान के बाद 400 साल के बाद शिवाजी महाराज जी हैं, जिनका की अधिकृत तरीके से राजरोहण का समारंभ हुआ है। मतलब इतने दिन में हमारे पास कोई राजा नहीं था। ये कैसे होता है? ए सब्जेक्ट विच इज गिवन टू द चाइल्ड, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं टाइम के हिसाब से, दैट इज टू बी टॉट।
1980s में जिन्होंने कंप्यूटर सीखा वो आज अमेरिका में बादशाह है। 1990s में जिन्होंने इंजीनियरिंग सीखी वो आज अमेरिका में बादशाह है। और अभी जाके कोई कंप्यूटर सीखने आएगा तो एआई ने सब बना दिया है। अभी क्या जरूरत है? द पीपल आर लूजिंग द जॉब्स नाउ बिकॉज ऑफ द एआई। सो यू हैव टू थिंक ahead of the time, and that's why Shivaji Maharaj is respected across the globe. In 1995, when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of India, Advani was the Vice Prime Minister of the India. That time they visited the Spain, and when Advani said that I am Vice Prime Minister of the India, वो जो स्पेन के जो प्रेसिडेंट थे वो उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा यस वेलकम बिकॉज यू आर फ्रॉम द लैंड ऑफ द छत्रपति शिवाजी, प्रेसिडेंट ऑफ द स्पेन। What he says that you are from the land of the Chhatrapati Shivaji, that's why I welcome you. तो आडवाणी को इतना पसीना आया, बोले यार जो मुझे भी मालूम नहीं इसको कैसे मालूम? How he came to know about शिवाजी महाराज? तो उन्होंने उनको बताया आडवाणी जी को, the sword of Shivaji Maharaj about which you are talking in India, that is Bhavani Talwar or Jagdamba Talwar, all these swords are made in our Spain. Made in Spain. तो आडवाणी जी पूछा कि भाई किधर, कब, कैसे? तो they replied that from our Madrid, at the distance of 72 kilometers, we have the one village that is called as Toledo, and till now the Toledo is still famous for making the great weapons and swords. So you can imagine 350 years back, Chhatrapati Shivaji Maharaj used to import the swords for him and for his army from the Spain. Can you imagine this? And that was a live example of the Advani ji, and you will be now in shock that how I came to know all these things. ये प्राइम मिनिस्टर के साथ हो रहा है, मुझे कैसे मालूम? The chief security in charge of the prime minister, vice prime minister, was my friend who told me. Right now also, I can approach the prime minister anytime. When I will be leaving here, America, and I will be going to the India, the first person will be the prime minister who will be felicitating me because I had been here to give a lecture in Parliament of World Religion. That time he used to purchase the weapons from Spanish people. That time he used to buy the barud, that is called as तोप उड़ाने के लिए लगता है ना वो dynamites or whatever it is, explosives he used to buy from Portuguese people. And how to use that cannons, for that purpose he had appointed the French people. स्पेनिश लोगों से तलवार, पोर्तुगीज लोगों से बारूद और फ्रेंच लोगों से ट्रेनिंग, and that's why he was able to defeat the British people. आप बोलेंगे इसका प्रूफ क्या है? So many times the British Navy was defeated by the Maratha Navy in the ocean of the India, and that's why they had written the statement that yes, if this Shivaji Maharaj is going to leave now, we are not going to create an empire in the India, and that's why they forgotten the Mumbai, Vasai and west coast of the India, and they left to the Kolkata, and from there by the treacherous nature they enter in the Bengal. और बंगाल को जीतने के बाद ब्रिटिश इंडिया में घुस गए। वेस्टर्न कोस्ट पे 100 साल तक they were restricted by only the Maratha Empire, that is because of Chhatrapati Shivaji Maharaj. क्यों? The subject taught to him. That's why he is a management guru. Why I am saying him the management guru? That what common people cannot see, that he can see. And that's why my intention is that whatever the teachings and preachings and practicing was given to him, that should be imbibed in the new generation people. And that's why on this 6th June of 2023, we had a foundation laying down ceremony in Pune at the Pathal of the Rajgarh Fort, the base camp of the Rajgarh. There for 27 years Shivaji Maharaj, Rajmata Jijao, their family lived in the same place,
we are constructing the temple, Rajmata Jijao Gyan temple, Jnan Mandir, you can say. For what purpose? Not to show off. That is to give a preachings and creating thousands of Shivaji so that they can save our country, they can save our nation, they can save our religion, they can save our culture. You know, what is problem now with us? We are here to for money, and in America getting money is, I think, quite simple because it's a land of opportunity. But we get one thing and we lose another thing. So we should make a balance between this, that we should have this also and we should have this also. जैसे एक किसी भी आदमी को कोशिश करनी पड़ती है कि औरत को भी समझाया जाए, माँ को भी समझाया जाए, ये दोनों को समझाते एक आदमी महापुरुष हो सकता है. ये इतना बड़ा टीचिंग it can happen, you know. So giving that teaching to the next generation is our intention, and that's why we are making that temple. And on the 12th of January, Honorable Prime Minister will lay down the first stone of that temple. A 400 crore rupees we are going to spend on that to give education to the next children only. Yeah. So when the name is to be given to the child, what name is to be given? यहाँ से मैंने शुरुआत की थी. So the name was given Shivaji. Shi means Shika, educate. Va means Vaga. Vaga means practice it. And if you will be taught and you will be practicing, definitely you are going to win. That is the meaning of Shivaji. Shika, Vaga आणि त्याप्रमाणे जिंका. म्हणजे म्हणून जास्तीत जास्त शिकलं पाहिजे. As much knowledge you will be having, that much the chances are there that in a short span of time you are going to get a big victories. लेकिन ये पॉसिबल कभी है. If mother is great, definitely she can make a child great. And if mother will be engaged with the Facebook, mother will be engaged with the WhatsApp, mother will be engaged with YouTube, then that is red button, blue button and green button. They are the signals for us. And all these are the red signals only. Though the WhatsApp is green, but it is not a green, this is a red only. और इससे क्या होता है कि we are losing our memory, we are losing our concentration. If I will ask you that what was the menu of your food, you may not be able to recall. That is because of screen. मेरे घर में टीवी नहीं है, मैं बच्चों को मोबाइल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया, he is a very great scientist like Niranjan ji. He said that to make your child a king, there is only one solution, that you should keep them away from the TV and mobile. मैंने बोला ये कैसे possible है? बोले yes, it is possible, highly possible, because all 99 kids will be engaged with the screen and your child will not be engaged, and that's why they can become a king. दुनिया को घुमाने का रास्ता यही है ना कि दुश्मन को एंगेज करो और खुद के काम में फोकस करो. So what the WhatsApp is doing, what the Facebook is doing, they are engaging ourselves in their interest, not in our interest. मैं भी सोशल मीडिया में हूँ, लेकिन मुझे भी कभी कभी लोग अंडाते हैं, घुमाते हैं. When I go there to put my reel, they show me another reel. You first see this and then your reel will be uploaded. घुमाने को कोशिश करते हैं लेकिन नहीं घूमने का. And that is your situation. अगर इसको समझ लिया ना हमने, तो उसके बाद future is ours. So all parents, my request will be that please take care of your phone, so that phone will take care of your child. And as much distance will be there between the child and the phone, that much they will be focusing on their career and they will be happy. Why people are committing suicide, you know? When there was no mobile, our span of attention was 55 minutes. Now it is only 8 seconds. You cannot concentrate yourself hardly for 8 seconds. And what happens? Because of technology, when at our childhood, we used to see the movie like Sholay or something like that. That used to be for 3 hours. Afterwards, what happened? 2 hours. Now what is happening? 1.5 hours. Now what is happening? 30 minutes YouTube video. Now what is happening? 30 seconds video called as reel. और 30 सेकंड के बाद अभी हमारी सिचुएशन ये है कि दैट 30 सेकंड का रील भी हम लोग पूरा नहीं देखते. 8 सेकंड के बाद वी यूज्ड टू जंप टू द अनदर रील.
and because of that we are losing a focus, and that's why people do get frustrated. और frustration में आदमी एक ही काम कर सकता है, either he can kill or he can kill himself. That's why please keep our children away as possible as from the screens. Because if we want to create a new Shivaji Maharaj in this 21st century, we should talk about the problems of the children. If the problems of the children will be solved, then only. नदी को पार करेंगे तो पहाड़ पे चढ़ेंगे ना. अगर नदी में ही घुस गए और नदी में अड़क गए, बह गए बेचारे, तो बह गए तो क्या करेंगे आगे? तो there are many challenges before the parents. वेळ संपल्याचे तुम्हाला सांगा, तो अपना चलता रहेगा. हा, तसं तुम्हाला जेवण वगैरे झालेलं आहे काय? घरी जाऊन झोपायचं आहे आणि मला तर सकाळी फ्लाईट पकडायची आहे. तुम्ही तरी निवांत उठू शकता, सूर्याच्या नंतर पण उठू शकता. आप सूरज उगने के बाद भी उठ सकते हैं, मुझे तो ऐसे कोई परमिशन नहीं. After that, question and हाँ. answer, then there will be a book publication Yes. also. He's planning to do it. We forgot about that. Yes. So now the two factors will be there. That I will be talking for 5 minutes, and after that we will be having the publication ceremony of this book. That is this year is the 350th coronation anniversary of the coronation of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So that book will be published by SMAP, that is Chhatrapati Shivaji Maharaj Antarashtriya Parivar, and Hemaji is also a associated with that organization, and many people will be associating to this organization. Though this organization is from America itself, but I do see the future for this organization because our Indian people goes to the different temples. They have different satsangas. Somebody goes to the Swami Samartha, somebody goes to the another mandal, somebody goes to another mandal. But in all these people, the common factor is only one, and that is Chhatrapati Shivaji Maharaj. That's why there is a future. And this organization is not going to say you that you leave this and come join this. You be there, because this is religious things where we are going. But all our religions are saved because of Shivaji Maharaj, and that's why all were united with this concept. Okay, and this organization is from the America only. So Mr. Vijay Patil is running this organization, and they are having they are celebrating the Shiv Jayanti in more than 100 cities of America. So they have taken a great initiative for that. So making Shivaji Maharaj a management guru, making Shivaji Maharaj a Chhatrapati Shivaji Maharaj is not a simple task, but it is simple if mother will be a great and she will teach a child what not to do. What to do, every mother is going to tell. What not to do is a great question, and if that will be answered to the child, definitely. देखो हमारे जिंदगी में हमको सारे लोग यही मिलते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, ये बताने वाले. क्या करने का वो बताने वाला तो कोई नहीं रहता है. एक आर्टिस्ट था, उसने बहुत अच्छा पेंटिंग का क्लास किया, कोर्स किया. फिर एक पेंटिंग उसने बढ़िया निकाली. एक चौराहे पे वो खड़ा रह गया और बोले दिस इज माय पेंटिंग, माय गुरु हैज टॉट मी फॉर 5 years फ्रॉम द स्कूल ऑफ दैट आर्ट. आई एम ग्रेजुएट एंड दिस इज माय पिक्चर, दिस इज माय पेंटिंग, गिव योर फीडबैक. तो सारे लोगों ने उसको सजेशन एक ही दिए, इधर गलती है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा एडिट होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा ऐड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. बेचारा डिप्रेस हो गया कि मैंने 5 साल जो पढ़ा वो लोगों ने तो 5 मिनट में धूल पे मिला दी छुट्टी में. किसी कुछ आता ही नहीं, कोई ऊपर से सजेशन दे रहा है, कोई नीचे इधर दुरुस्त करो, इधर करो, ये करो. He got depressed. Again he went back to his master and he said that what I learned from the 5 years, that I made a first picture and that also with the hundreds of corrections. So either you are not a correct guru or I am not a correct student. Something is problem over there. तो उन्होंने पूछा what is problem with you? बोले नहीं, मैंने एक पिक्चर निकाला, एक पोस्टर बनाया, वो चौक में रखा और लोगों को सजेशन पूछा कि इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ गलत रहेगा तो बताओ. तो एवरीबडी वाज देयर टू सजेस्ट मी दैट मेक दिस करेक्शन. सो बोले नहीं, योर पिक्चर इज करेक्ट. ओनली द प्रॉब्लम इज दैट यू आस्क टू द पीपल फॉर सजेशन. They will be giving a such suggestion from their directions which will not be applicable to you. So now take this same poster and put a small notice below this that if there is any correction, please tell me with correction. अगर इसमें कुछ गलती है तो कैसे सुधारने की वो भी मुझे बताओ. So I am here for this. Throughout the day he was waiting for the suggestion, but nobody was there who was able to tell that what kind of the correction should be made in that. That's why the mantra for the career
that is given by the Jijao to Shivaji Maharaj is that focus on your intentions, focus on your willingness. लोगों को अगर पूछने जाएंगे ना तो लोग यही बोलते थे अभी तो थोड़े हालात खराब चल रहे औरंगजेब इज वेरी पावरफुल यू नो इट इज नॉट ए टाइम टू मेक ए स्वराज्य. तो एक 50 साल बाद हम लोग सोचते हैं ऐसा अगर वो सोचने जाए होते ना किसी को तो कुछ नहीं होने वाला था. तो अपने दिल की सुननी चाहिए. क्या लगा? दिल को लगा. और जब दिल को लगता है ना तो ही काम बनता है. जिसको जिसको दिल को लगा. अभी कितने सारे इधर मेरे सामने यंगस्टर्स हैं, इनको कॉलेज में किसी ने ना बोला तभी तो वो इंजीनियर बन गए ना, नहीं तो दूल्हे बन जाते. नेपोलियन का क्या हुआ था? नेपोलियन को एक लड़की पसंद आई, वो राजा की लड़की थी. तुरंत तो राजा के दरबार में गया और बोला कि आई वांट टू मैरी योर डॉटर. तो उसने बोला औकात देखी क्या तेरी? औकात मालूम है क्या? अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री, क्या बात कर रहा है तू? इमीडिएटली विल बी किल्ड ओवर हियर. बोले नहीं, उसके लिए इंतजार करो, इट्स नॉट गोइंग टू पॉसिबल. बोले क्या पॉसिबिलिटी क्या है? बोले पॉसिबिलिटी ये की है कि आई कैन बी ए सन इन लॉ ऑफ यू, मैं तुम्हारा दामाद ही बनूंगा. तो बोले औकात देखी तुम्हारी? बदन पे एक ड्रेस है और कमर में एक तलवार है, इससे ज्यादा कुछ है क्या? रहने को घरदार भी कुछ है क्या? प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ है क्या? तो नेपोलियन बोनापार्ट्स आंसर वाज दैट only with this single cloth and with this single sword I am going to be a king and the world will see. And afterwards you know the Napoleon Bonaparte won the half of the world. ये सारा खेल किसका है? अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो. अगर लोगों को पूछते बैठेंगे ना तो लोग इतने सजेशन देंगे कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. जो आपको हमें अच्छा लगता है वही करना चाहिए. लोग तो वैसे भी आपके ऊपर ताना मारने ही वाले हैं. काले को कहाँ लोग सताते, गोरे को भी सताते कि पाली साखर दिसतो जरा पांढरा फुट. पीपल आर गोइंग टू क्रिटिसाइज एनीवे. आप गरीब है तो भी क्रिटिसाइज करेंगे, अमीर हो गए तो भी क्रिटिसाइज करेंगे, आप बहुत स्कॉलर हो गए तो भी क्रिटिसाइज करेंगे, आप अनएजुकेटेड है तो भी क्रिटिसाइज करेंगे. लोगों का धर्म ही है क्रिटिसाइज करना. इसलिए लोगों को यह मत पूछो मैंने क्या करना चाहिए, सिर्फ एक ही आदमी से पूछो, वो आप खुद है कि मैंने क्या करना चाहिए, और बस उतना ही करो. मुझे ऐसा लगता है. थैंक्स हेमा जी, अविनाश जी फॉर होस्टिंग दिस ग्रेट प्रोग्राम ओवर हियर. मैं तो बात करते करते रात हो जाएगी, मैं तो सोने वाला नहीं है, लेकिन आपके लिए तो कुछ मर्यादा है जिसलिए मैं रुकता हूँ. और कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो वो हम लेंगे और उसके बाद हम लोग ये स्मैप का जो छत्रपति शिवाजी महाराज का बुक है उसका हम लोग लॉन्च करेंगे. और जो कोई अच्छा सवाल पूछेगा उसको हम यहाँ पर ही डायरेक्ट फेलिसिट करने वाले हैं. सवाल पूछने के लिए फेलिसिट करने वाले. बताओ सवाल. अब सवाल क्या पूछने का, इसके ऊपर सवाल नहीं होना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. सवाल भी आप बता दो. हाँ, सवाल भी आप बता दो. ऐसे कैसे? सवाल आप बताओगे तभी तो आप जवाब दोगे. हाँ, There are some questions. हाँ. पुस्तक मिळेल. हा, मैत्रीण रंगलेली आहे, रंगू द्या. काय कोणाला घरून कॉल आला तर ते जाऊ शकतील नंतर. हा, They can speak without. हा, विदाउट माइक ऑल्सो यू कैन स्पीक. मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने बताया हाँ. कि उनकी माता जी ने बताया कि कैसे अगर आप घिर जाओ तो निकलना है, हाँ. वो क्या बताया था? हाँ, ओके. जब आप कोई एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं तो आपके दुश्मन तब नहीं बनते जब आप एम्पायर खड़ा करते हैं. जब आप किसी को बोलते हैं कि मैं एम्पायर बनाने वाला हूं या मेरे मन में ऐसा ऐसा है, जिस दिन आप ये डिस्क्लोज करते हैं उसी दिन से आपके दुश्मन चालू हो जाते हैं. बराबर. और हमारे दुश्मन ज्यादा लंबे नहीं रहते, वो अगल बगल में रहते हैं. बहुत से तो हमारे घर में रहते हैं, बहुत से तो हमारे रिश्ते में होते हैं, और बहुत से हमारे दोस्त के रूप में होते हैं जो साथ में रह के भी हमको पंक्चर करते रहते हैं. अरे ये तो अपने से नहीं होने वाला यार, अपन तो मिडिल क्लास आदमी लोग हैं, अपन तो इधर रोजी रोटी के लिए आए, काहे के लिए झंझट में पड़ने. यहाँ से शुरू, समझिए नहीं. तो इंस्पिरेशन देने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, जो आपको मोटिवेट करें, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए. पर फिर भी घेरे में से कैसे निकले? हाँ, आदमी जब खुद के विचारों के घेरे में फंस जाता है ना तो ही दुनिया के घेरे में फंस सकता है. जब खुद के विजन क्लियर हो ना, दुनिया के किसी भी घेरे से वो निकल सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, औरंगजेब ने क्या किया था. औरंगजेब ने 6-6.5 लाख की आर्मी मूव की. फोकस क्या था उसका कि शिवाजी बाहर नहीं निकलना चाहिए.
तो उसका एक रिश्तेदार था पोलाद खान बोल के, ही वॉज वेरी ब्रुटल, ही वॉज वेरी क्रूएल एंड वेरी शार्प, कि उसके नजर से ना परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है, इतना तेज था। ऐसे आदमी को जिम्मेदारी दी। फिर शिवाजी महाराज ने इसको कैसे गंढाया, तो उनको एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया था शिवाजी महाराज को। द नेम वॉज सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डिसेप्शन, गुमराह करने की नीति। खुद गुमराह नहीं होने का, दुश्मन को गुमराह करने का। अब बताइए कैसा करने का। अभी शिवाजी महाराज के ऊपर फोकस है, उनको अरेस्ट किया। शिवाजी महाराज पुणे से जाते वक्त है ना, उनके साथ 10 लोग ऐसे लेके गए थे जो शिवाजी महाराज के जैसे ही दिखते थे, सेम टू सेम। क्या करना था, सिर्फ शिवाजी महाराज के कपड़े अगर उनको पहनाए जाए तो वो सेम टू सेम शिवाजी महाराज के जैसा ही दिखेगा, बोलेगा और बैठेगा। उन्होंने ऐसी ट्रायल की थी। व्हेन पनाला फोर्ट वाज सीज्ड बाय द सिद्दी जोहर, उन्होंने एक डुप्लीकेट शिवाजी पैदा किया और उसको एक 3 महीने में उतना ट्रेन किया कि शिवाजी महाराज कैसे चलते, कैसा बोलते, कैसा बैठते। और क्या हो गया, जब वो पालकी में बैठे ना, तो वो पालकी सीज की किसने, सिद्दी जोहर ने। वो उसमें कौन थे, असली शिवाजी नहीं, नकली शिवाजी थे। तो ये जो ट्रायल शिवाजी महाराज ने वहां पर सक्सेस की थी, बिकॉज ही वॉज गिवन ए सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डिसेप्शन। शत्रु अगर आपको घेरने की कोशिश करे तो उसको कैसे फंसाने का, वो आपको फंसा रहा है, आप उसको फंसाना चाहिए, मतलब नहले पे दहला। तो ये तो सिद्दी जोहर के साथ हो गया, बराबर। अब औरंगजेब तो इससे चतुर है, क्योंकि जो शिवाजी महाराज की स्टडी है उसकी केस स्टडी तो औरंगजेब भी स्टडी कर रहा है। शिवाजी महाराज ने सिद्दी जोहर को कैसे फंसाया, क्योंकि सिद्दी जोहर जो है वो तेलंगाना से आया था और उसने कभी आंखों से शिवाजी महाराज को नहीं देखा था और फोटो भी उसके सामने कभी नहीं लाई थी। इतना बताया कि इतनी इतनी हाइट का, ऐसे ऐसी दाढ़ी और ऐसे ऐसे कद का आदमी, ये शिवाजी। बस शिवाजी महाराज ने इसका फायदा उठाया, नकली शिवाजी उसके कब्जे में दिया और खुद निकल गए, बराबर। अब औरंगजेब इसने स्टडी किया है कि शिवाजी ऐसा कर सकता है, तो शिवाजी महाराज 10 लोग साथ में लेके गए जो ऐसे सेम टू सेम दिखते थे। उसमें से एक हीरोजी फरजत बोल के था जो सेम शिवाजी महाराज के जैसा था और शैडो की तरह उनके साथ चलता था। मतलब अगर शिवाजी महाराज पालकी से उतरे और इसको बिठाया ना, नोबडी नोस कि असली शिवाजी कौन है, नकली शिवाजी कौन। इसको साथ में लेके गए थे और बाद में क्या किया कि वो उस सोफे पे उसको सुलाना चालू कर दिया। किसको, हीरोजी फरजत को। और शिवाजी महाराज जो है ना, पहले क्या होता था, हीरोजी फरजत बाहर घूमने जाता था, शिवाजी महाराज सोए रहते थे। अभी सिचुएशन चेंज हो गई, हीरोजी फरजत सोया करता था, शिवाजी महाराज बाहर घूम के आते थे। ऐसा 10-15 दिन ट्रायल हो गया और उसके बाद ऑन वन फाइन डे शिवाजी महाराज को मालूम पड़ा कि सवेरे 6 बजे का जो पोजीशन है ना, दैट इज ए ग्रेट फॉर अस। फ्राइडे का दिन चुना, 17 अगस्त 1663 का दिन था, 64 का। पहली वाली जो ड्यूटी वाले सोल्जर है ना, वो रिलीज होते थे और नए वाले आते थे। इनके बीच का जो गैप है ना, वो पकड़ा और सवेरे सवेरे लोग तो ऐसे ही ओके 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 करते हैं। तो ये जो शिवाजी महाराज की जगह पे इसको सुलाया, शिवाजी महाराज बाहर चले गए, जो गए वापस कभी किसको दिखे नहीं। और बाद में जो हीरोजी फरजत आया वो इनकी जगह पे सो गया और अंदर जाते टाइम उसने एक सिचुएशन पैदा की। उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया, जो सिद्दी जोहर का जो कमांडर होता था ना, बोले डू नॉट डिस्टर्ब शिवाजी महाराज बिकॉज थ्रू आउट द नाइट ही हैज नॉट गॉट ए गुड स्लीप एंड ही इज गेटिंग वोमिटिंग प्रॉब्लम, ही इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर एंड ऑल थिंग्स, डू नॉट डिस्टर्ब एट एनी कॉस्ट। तो बाकी जो बेचारे डर गए। 2 बजे तक कोई आया नहीं तंबू के अंदर कि शिवाजी महाराज है भी या नहीं भी। 2 बजे का नमाज खत्म होने के बाद वो पोलाद खान आया। वो लंबे से देखता था शिवाजी महाराज को, रोज खिड़की जो थी ना वो वहां से देखता था और वो एक अंदाजा लगाता था कि शिवाजी महाराज है, बीमार है, इधर सोए हैं और कंबल उड़ के सोए हैं। कैसे शिवाजी महाराज को पहचानता था वो? शिवाजी महाराज बड़े चतुर थे। वो जहां सोते थे ना, वो सोफे पे, उसके बाजू में वो अपना पगड़ी ऐसा निकाल के रखते थे और उसके बगल में अपनी तलवार रखते थे। तो पोलाद खान रोज क्या करता था, अब फोकस हटा दिया उसका, सोफे पे नहीं, अभी सोफे के बाद टेबल पे पोलाद खान आता था, खिड़की से देखता था, क्या पगड़ी है ना, तो तलवार है ना। उनका हाथ में कड़ा रहता था 12 तोले का, वो गोल्डन होता था। वो 3 चीजें वो रोज देखता था। क्या कैप है, शिवाजी इज देयर, स्वॉर्ड है, शिवाजी इज देयर, कड़ा इज देयर, शिवाजी इज देयर। इधर क्या है,
इधर दूसरा आदमी सोया है उसका फोकस इधर है। 17 अगस्त को जब वो अंदर आया तो 2 बजे भी उसको ये देखने मिला, क्या पगड़ी है, तलवार है, कड़ा है। वो बाजू में बैठा और बोला 2 महीने से मन्नत मांग रहा हूं खुदा से, शायद आज पूरी हो गई कि शिवाजी मर जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेगा हमारी ड्यूटी चालू रहेगी। ये मर गया, ड्यूटी खत्म हो गई, तो ये मरना चाहिए। तो लिहाजा आज खुदा ने शायद हमारी मन्नत मान ली। ये तो मर गया बेचारा, आधे घंटे तक खुद ही बात कर रहा था अकेला, राजा जी कैसी तबीयत है, अभी क्या है आपके आगे के प्लान, ऐसा ऐसा। शिवाजी कोई जवाब नहीं दे रहे। जवाब देने के लिए कौन था उधर? वो हीरोजी फरजत भी गायब था, वो कंबल के नीचे तकिया और बाकी की सारी चीजें इसे ऐसे रखी थी जैसे कि कोई आदमी सोया है। मतलब शिवाजी महाराज तो निकल गए, उसके बाद इनका आदमी भी निकल गया जो दम दे रहा था, क्या अंदर नहीं आना क्योंकि उनकी नींद खराब हो जाएगी। जाते टाइम वापस दम देके गया क्या कि अभी अभी उनको नींद लगी है, कम से कम 4-5 घंटा कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। वो जो निकल गया ना, उसके बाद से महाराष्ट्र में स्टोरी एक मुहावरा चालू हुआ, आता जर इथून सटकलो ना तर औषधाला पण सापडणार नाही। त्या औषधाला म्हणजे तो औषध आणायला गेला। He said that I am going to bring some medicines for Shivaji Maharaj because throughout the night he was not getting the sleep, vomiting, fever and all things happening. और शिवाजी महाराज ने 15 दिन पहले ये नाटक चालू किया था, मैं बीमार हूँ, उल्टी हो रही। एक्चुअली शिवाजी महाराज प्रोटीन लेते होंगे, काजू बादाम भी खाते होंगे, और शिवाजी महाराज बीमार थे इसका प्रूफ किसके पास है? जो डॉक्टर देखने के लिए आया ना, उसको भी शिवाजी महाराज ने उसके हाथ पे डॉलर रखा दिए थे। उसको क्या प्रिस्क्रिप्शन तो लिख के देनी है, आपको कैसे कैसे हो रहा है, बोले कुछ तो हो रहा है, प्रिस्क्रिप्शन लिखा कुछ तो हो रहा है, खत्म बात। डिसीज इज नॉट डायग्नोस। तो बेसिकली ही प्लेड डेड। हाँ यही हुआ ना। और मैं आपके अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम यू। ये सब जो डिटेल्स हैं कहानी की, ये इतिहास में कहीं अंकित हैं या कहाँ से ये रिसर्च करके आपने निकाली है? तो मेरी जिम्मेदारी यही है कि जो लोगों के अभी तक सामने नहीं आया वो लाना चाहिए, जो रिसर्च नहीं हुआ वो होना चाहिए। और इसलिए मैंने खुद 44 बुक्स लिखी है, मैंने खुद लिखी है। और हमेशा मेरा यही कहना रहता है बुक में कि इफ समथिंग इज रॉन्ग इन दिस बुक यू कैन प्रूव इट। अभी तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुई, किसी ने मेरे किसी किताब को चैलेंज नहीं किया। नहीं। हाँ नहीं, इसलिए कि मैं प्रूफ के साथ और हिस्टोरिकल रेफरेंस को पकड़ के आगे चलता हूँ। नहीं, मेरा मतलब चैलेंज करने से नहीं था, मैं काफी खुश हूँ कि कहाँ से निकाल के लाए हैं। इसलिए रोज 8, 10, 12 घंटे रिसर्च करना पड़ता है। और मेरी उम्र ही 45, ज्यादा नहीं है। एक बॅक बेंचर्सचा क्वेश्चन आहे की शोकांतिका आहे की महाराजांबद्दल आपण एवढं चांगलं सांगितलं आणि सगळेच जण आम्ही तर देवच मानतो, पण हा झाला आपला भाग। पण जर का तुम्ही जर का गव्हर्नमेंटच्या पुस्तकांमध्ये बघितलं तर महाराजांचे चॅप्टर्स आम्ही जे शिकलोय इतिहासात त्या काळात की आम्ही वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट की महाराजांचा चॅप्टर म्हणजे तो ऍक्च्युली इतिहास नाही, आम्हाला ते स्टोरी वाटायची रे, तुम्ही जसं सांगितलं। पण आजच्या मुलांना आम्ही बघतोय की हार्डली एक पॅरेग्राफ असतो, तर अशा शैक्षणिक पुस्तकातनं एका पॅरेग्राफमधनं महाराज काय करणार आहे? म्हणजे जाणीवपूर्वक झालेला हा एक षडयंत्र आहे की आपल्या मुलांना पोहोचलेलंच नाहीये ते। दुसरी गोष्ट म्हणजे माझा मुलगा इथे वर्ल्ड हिस्ट्रीचा टॉपिक घेतलाय त्याने आणि त्यात त्याला दिसलंय की महाराजांची जी किंवा मराठ्यांची जी प्रतिमा आहे ती अत्यंत चुकीची प्रतिमा आहे। त्या प्रतिमेत असं दाखवलेलं आहे की वी वर फायटिंग अगेन्स्ट द मुघल्स, म्हणजे मुघलांचं हे राज्य आहे आणि आपण त्यांना फाईट करतोय, म्हणजे आपल्याला बागी म्हणून दाखवलं जातात। आणि माझ्या मुलाने त्याच्यासाठी पुस्तक त्यांनी चॅलेंज केलं, त्यांना ईमेल लिहिलेली आहे की दिस शुड बी स्टॉप, म्हणजे इतकं बेकार आणि अत्यंत घृणास्पद असं आपलं डिपिक्शन आहे मराठ्यांचं। तर ह्याच्यासाठी आपल्या गव्हर्नमेंट तर्फे काहीतरी आम्ही तर करतोच आहोत, पण सिच्युएशन अशी सिच्युएशन भारताची अशी आहे, जब हम लोग आजाद हुए तभी मोस्ट ऑफ द पीपल वर इलिटरेट, लेकिन जो चुन के जाते थे 445 सांसद वो सारे एजुकेटेड थे। मोस्ट ऑफ देम वर द बैरिस्टर्स फ्रॉम द इंग्लैंड, बहुत सारे उसमें बैरिस्टर थे। हाँ, जैसे बैरिस्टर जिन्ना, बैरिस्टर सावरकर, बैरिस्टर अंबेडकर और ऐसे काफ़ी सारे बैरिस्टर उस टाइम होते थे, पढ़े लिखे लोग। जैसे पंजाबराव देशमुख, ही वॉज फेलो फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी।
ही वॉज कृषि मंत्री, ओके, एग्रीकल्चर मिनिस्टर फॉर द इंडिया, ओके। तो सिचुएशन ये थी कि लोग अनपढ़ थे, लेकिन जो राज करने वाले लोग थे वो एजुकेटेड थे। अभी इंडिया की हालत कुछ उल्टी हो गई है, उल्टी हो गई है। दे पीपल आर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर, एंड द पीपल हु आर इलेक्टेड 4th क्लास, 2nd क्लास, 10th क्लास, हार्डली 12th क्लास। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं आप कि वो सिलेबस ऑफलाइन ना बता रहा आपको, ऑफलाइन बता रहा, ऑफलाइन किसने शूट नहीं करना है बात को, या तो बाद में रिलीज नहीं करना है, इसको स्टॉप करो। स्टॉप कर दो। नहीं, एक मिनट के लिए स्टॉप करें, फिर स्टॉप क्यों किया? हाँ, जब मुझे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन का इन्विटेशन मिला तो इट वॉज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द महाराष्ट्र एंड इंडिया ऑल्सो। तो इसके बारे में मैंने लेटर लिखा 11 तारीख को, 7 तारीख को लेटर मिला मुझे, मैंने 11 तारीख को लेटर एड्रेस किया सीएम एंड बोथ डिप्यूटी सीएम। महाराष्ट्र में तो सीएम मिले ही नहीं मुझे, तो मैंने उनको दिल्ली में पकड़ा। तो जब मैं पीएम ऑफिस की तरफ गया तो उनके लड़के के घर पे मैंने उनको पकड़ा बराबर से, तो उनको ये मामला बताया। हालत ये खराब थी की उन्होंने म्हणजे नशिबाने त्यांनी विचारलं नाही मला की हे शिकागो कोणत्या जिल्ह्यात येतं। एकनाथ शिंदेंनी मला नशीब त्यांनी विचारलं नाही की हे शिकागो कोणत्या जिल्ह्यात येतं। तर ही जर सिच्युएशन असेल साहेब, बरं लेटर मराठीत लिहिलं होतं मी, असं नाही की इंग्लिशमध्ये लिहिलं, इजंट इट। आणि एक खासदार बिचारे ते हेमंत पाटील त्यांना ओढून ओढून सांगत होते बरं का की साहेब हा विषय खूप मोठा आहे, व्यापक आहे आणि आपण यात लक्ष घाललं पाहिजे, बिफोर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया विल लुक आफ्टर दिस। त्यांनी इंटरफेअर करायच्या अगोदर आपण यात घुसूया, समजलं नाही आता सब्जेक्ट। इतिहास अभ्यासक्रमात कधी येईल माहिती आहे का, इतिहास घडवण्याची मानसिकता असणारे राज्यकर्ते असतील तर, अदरवाईज नाही। जर आमच्या मुलांना गुलामच बनवायची त्यांची इच्छा असेल ना, तर ते शिवाजी महाराजांचा इतिहास कधीच दाखवणार नाहीत। जर आपली मुलं राजा व्हावं असं त्यांना वाटत असेल तरच ते शिवाजी महाराज सिलेबसमध्ये घेतील, आणि जर ते घेत नसतील तर आपण सावध व्हायला पाहिजे। आपण प्रत्येक आईनं जिजाऊ व्हायला पाहिजे, आपण प्रत्येक बापाने शहाजी व्हायला पाहिजे, आणि समाजाने हे वाण म्हणून, एक सतीचं वाण म्हणून प्रत्येकाने आपल्या मुलांना घरामध्ये शिवाजी महाराजांचं चरित्र वाचायला दिलं पाहिजे। इंग्लिशमध्ये पाहिजे इंग्लिशमध्ये, मराठीत पाहिजे मराठीत। आणि एक माझी तुम्हाला सगळ्यांना रिक्वेस्ट अशी पण असेल बरं का, तुम्ही वेगवेगळ्या प्रांतातून आले असताल, वेगळ्या लोकांना मानणारे असेल, दॅट इज नॉट इश्यू फॉर मी। माझी एक विनंती तुम्हाला आहे, दिवसभर तुम्ही काय करत असताल, लॅपटॉपवरती, कम्प्युटरवरती किंवा ऑफिसमध्ये काय असेल ते असेल, संध्याकाळी मात्र तुम्ही एकत्र जेवायला मात्र सगळे एकत्र असले पाहिजे। आणि टेबलावरती तुमची चर्चा काय पाहिजे, ह्यानी त्यांनी त्याच्या नाही, मग तुझं काय बाबा, माझं काय बाबा, असं हे सगळ्या चर्चा आल्या पाहिजेत। आणि तिथं मुलाला आहे ना, आई वडिलांनी गाईड करायला, हा 1-2 गोष्टी वाचल्या असतील, 2च पानं वाचा रोज, त्या मुलाला सांगा किंवा मुलाला सांगा की 2 पानं तू वाच आणि आम्हाला सांग। असं आपण 2-2 पानांनी जरी सुरुवात केली ना, आणि डेफिनेटली मी तुम्हाला सांगतो 2 पानांनी तुम्ही सुरुवात केली, हिंदीत सांगा, हाँ इंग्लिश। हाँ, मेरा इतना कहना है कि अगर हम हमारे बच्चों को ऐसी इंस्पिरेशनल बुक दे जैसे मेरे पास है, और ज्यादा नहीं, उनको 2 ही पेज पढ़ने के लिए बोल सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं, या तो आप पढ़े और उनको ये स्टोरीज बताइए। आप गुजरात में कभी जाएंगे, गुजरात से कोई है क्या? शायद मैडम तुम्ही कुठल्या तशी समझो अपन हाँ। गुजरात में आप जाएंगे ना तो गुजरात की बहुत सी माताएं अपने बच्चों को शिवाजी महाराज की लोरियां सुनाती है, ललबाइस। ये उनके सिलेबस में है, गुजरात के सिलेबस में है, महाराष्ट्र के सिलेबस में नहीं है। बोंबलायचं का? आणि लंडन मध्ये म्युझियम मध्ये हा. रिमेंबर यू हॅड इथे कोणतरी आले होते, मी सांगतो. हेमाताईंकडेच आले होते, सांगतो. ते वॉर कसं हे सांगतो. हा तुम्हाला In the Museum of the Britain, they show you on the screen, प्रोजेक्टर पे बताते हैं 10 टॉप 10 वर्ल्ड वॉर्स और 10 टॉप 10 वॉर स्ट्रेटेजीज इन द वर्ल्ड। उसमें 8 नंबर का एक वॉर बताते हैं, वो वॉर है बैटल ऑफ प्रतापगढ़ रिगार्डिंग छत्रपति शिवाजी महाराज, और उसका 40,000 टिकट ब्रिटिश लोग लेते हैं। यस हाँ। ठीक है? मतलब जिन अंग्रेजों को 100 साल तक शिवाजी महाराज ने हिंदुस्तान में
अपना राज कायम करने से रोका, बंबई और वेस्ट का कोस्ट छोड़ के उनको कलकत्ता की तरफ ईस्ट में भागना पड़ा, पूरा ऐसा राउंड लेके दरिया में 100 साल तक उनको रुकाया शिवाजी महाराज ने। अभी वही अंग्रेज शिवाजी महाराज का वॉर दिखाते हैं और 40,000 रुपए का टिकट लेते हैं, और हमारे लोग 4,000 की भी किताब लेने बोलेंगे तो बोलेंगे यार उससे क्या होने वाला है, वैसे भी मेरे बच्चे की बहुत ज्यादा फी मैंने भर रखी है, गाड़ी का भी बहुत खर्चा आया है, अभी वो उसका बर्थडे भी आया है। तो ये दुनिया भर के इतने रीजन बता देना। गरीबी कपड़ों से नहीं, गरीबी पैसों से नहीं, गरीबी विचारों से होती है, पहले उससे भागना चाहिए। हमें ऐसा बोलना चाहिए, भले मैं एक जूता कम मेरे बच्चे को दूंगा, भले एक ड्रेस मैं बच्चों को कम दूंगा, लेकिन एक किताब तो हर साल उसके बर्थडे पे मैं उसको दूंगा ही दूंगा। और पॉसिबल हो तो हर महीने किताब आप लेके आ सकते हो, उसको दे सकते हैं। और बच्चों को ये नहीं बोलेगा क्या तू पढ़, गलती से उसके टेबल पे रख देने की, जानबूझ के रख देने की। और कभी ना कभी उसके मन में आता है क्या लिखा है, क्या मेरे माँ ने ला के रखा है, क्या मेरे बाप ने ला के रखा है। ये करने का ट्रिक। दूसरा ट्रिक, वो जब भी आएगा अपने सामने, लड़का है लड़की जो भी है, अपन ऐसा भले पढ़ने का नहीं, कॉलेज के टाइम अपन ऐसे ही करते थे ना, माँ बाप आए पैसा लेके बैठते थे, हाँ जैसे कि पढ़ रहा है, अभी वही एक्टिंग करने का सेम एक्टिंग करने का ऐसा। तो बच्चा एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, बोले क्या पढ़ रहे यार, मेरे को नहीं पता क्या पढ़ रहे खुद, बोले देखो मेरे को भी पढ़ने का है। अपन पहले बोले नहीं तू मत पढ़, तेरे औकात की बस की बात नहीं है। बोलेंगे ना तेरा औकात नहीं, उसका ईगो हार्ड हो जाता है, और ईगो हार्ड हो जाता है ना, तो अपन बोलेंगे नहीं तू 2 लाइन में नहीं पढ़ सकता यार, बहुत ऊंची चीज है, नहीं मैं आपको हफ्ते भर में पढ़ के बताऊंगा। तो ऐसा उसको मोटिवेट करने का, उसको बाद में बोलेगा यस नाउ दिस इज द प्राइस फॉर यू। तो ऐसा मोटिवेट हम घर में भी कर सकते हैं। और जर आपण घरात नाही शिकवलं ना तर घरात इतिहास पोचणार नाही। And Shivaji Maharaj is not a product of the government of India or government of Maharashtra. It is a product of the community. It is a product of the nation, and the nations and peoples have to do this. Any more questions? थोडक्यात घेऊया. हाँ सिद्धेश. हाँ. तर सर असा प्रश्न होता की आज हिंदी इंग्लिश. सो आज 21st सेंचुरी नाही तू मराठी विचार, मी हिंदीत सांगतो, काय प्रॉब्लेम. आपण 21व्या शतकात हे म्हणतोय किंवा पर्टिक्युलरली माझ्यासारखे जे विद्यार्थी आता मी इकडे मास्टर्स साठी आलो आणि मग शिवाजी महाराजांचे जे काही आपले संस्कार आहेत किंवा ते आता मला पर्टिक्युलरली आवड आहे सोशल काम आणि बाकी हे करण्यासाठी, सो त्याच्यासाठी थोडा गायडन्स करू शकता का? म्हणजे आता सरांचा प्रश्न होता की मुलांसाठी पर्टिक्युलरली आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आम्ही काय करू शकतो. ये हिस्ट्री में मैं 25 साल काम करने के बाद मेरे ध्यान में ये आया कि ये बहुत बड़ा ब्रिज बनाना पड़ेगा कि व्हाट वाज द पास्ट, व्हाट इज प्रेजेंट एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर। तो जो कुछ भी शिवाजी महाराज को सिखाया, संस्कार के बारे में हो, स्ट्रैटेजी के बारे में हो, मैनेजमेंट के बारे में हो, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हो, इंजीनियरिंग के बारे में हो, ऐसे सब के ऊपर मैंने एक अलग किताब लिखी है। जैसे शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु, उद्योजक शिवाजी महाराज, शिवाजी द ग्रेट इंजीनियर, शिवाजी द कॉर्पोरेट किंग, शिवाजी महाराज एंड MBA, जिजाऊ द मदर ऑफ ऑल गुरु, ऑल द टीचिंग्स फ्रॉम द मदर टू द सन। ऐसे सारे सब्जेक्ट है मेरे, और यही मैं इम्बाइब करना चाहता हूँ अगले जनरेशन में। और इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के अभी 6 जून को जो इनॉग्रेशन किया है, भूमि पूजन किया है जिजाऊ न्याय मंदिर का, उसका मकसद यही है कि आपके बच्चे और दुनिया भर के हमारे जितने भी लोग अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, इरिस्पेक्ट ऑफ द कास्ट, कलर, क्रीड एंड इवन द रिलीजन, हर माँ अपने बच्चे को सक्सेस होना देखना चाहती है। वो माँ का सपना पूरा करने का काम मैं कर रहा हूँ। और जब मैंने इनॉग्रेशन किया, आपको सुन के धक्का लगेगा, देश भर से 500 साधु संत आए थे भूमि पूजन के लिए, सिर्फ भूमि पूजन के लिए। और ये टेम्पल अभी हम 12 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, उनके हाथ से ये होगा और 400 करोड़ का मंदिर बनेगा। लेकिन मंदिर का टारगेट ये नहीं कि उसमें मार्बल्स होंगे, ये डिजाइन होंगे। टारगेट ये है कि नए शिवाजी हमको प्रिपेयर करने हैं और उनको ऐसा बनाना है। और कोशिश मेरी ये है, परसों हेमाताई ने मुझे अच्छा सजेशन दिया था, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि यहाँ पर क्रिसमस में 15 दिन छुट्टी होती है, बाद में 2 महीने की छुट्टी होती है। उस टाइम में जो भी लोग अमेरिका से, यूरोप से, बाहर से लोग आएंगे इंडिया में, उनको हम लोग एयरपोर्ट से ही पिकअप करेंगे, 15 दिन तक पूरे महाराष्ट्र में घुमाएंगे, चाहे ज्योतिबा हो, चाहे भवानी टेम्पल हो, और 4-5 फोर्ट है, ऐसा पूरा घुमा के, और उनको हर दिन शाम को शिवाजी महाराज की कुछ अच्छी स्टोरियां, कुछ पवाड़े, कुछ वेपनरीज के बारे में, कुछ म्यूजियम के बारे में, ऐसा सब बताते हुए रोज अलग खाना, रोज अलग लोकेशन और रोज अलग अलग स्टोरीज
जो प्रैक्टिकली वहाँ के लोग बताएंगे उन झोपड़ी में कैसे रहते हैं, झोपड़ी में भी कैसा आनंद रहता है, और किला कैसे चढ़ते हैं बारिश में, सब ये सब हम इतना इंस्पायर करेंगे बच्चों को कि डेफिनेटली हम कम से कम एक 10,000 शिवाजी तो पैदा करने का कोशिश करने वाले हैं. कम से कम मुलांना ज्ञान पण देऊ, प्रेरणा पण देऊ, आणि सगळ्यात महत्वाचं संस्कार पण देऊ. लक्षात घ्या, मुलांनी खूप पैसे कमवले आणि आईवडिलांना वृद्धाश्रमात पाठवलं तर काय कमवलं? शिवाजी महाराज तसे नव्हते. शिवाजी महाराजांनी सगळे किल्ले डोंगरावर बांधलेत, समुद्रात बांधलेत, पण एकच किल्ला फक्त जमिनीवर बांधलाय खाली रायगडच्या पायथ्याला. तो त्यांच्या आईसाठी होता. कारण त्यांना उंचीवरती गेलं ना की त्यांना कफ पुंगळून यायचं, आणि मग आपली आई जास्त दिवस जगली पाहिजे बरं का. याच्यासाठी तिच्यासाठी 4 एकरमध्ये किल्ला बांधणारा जगातला एकमेव राजा आहे कि मेरी माँ जिंदा होनी चाहिए, लंबी जिंदगी उसकी होनी चाहिए, इसके लिए अलग से किला बांधा. और उनकी एक वाइफ 24/7 उनकी सेवा में रहती थी. रेणु जी, आपने भी ये सब किया है, 35 साल तक आपने किया है, आपके सास ससुर इनकी सेवा आपने की है. और कोई सेवा खाली नहीं जाती. पुतळाबाई जे आहेत ना, ते जिजाऊंच्या सेवेसाठी कायम 24 तास तैनात असायच्या. एक बीबी रिझर्व, सिर्फ आपको इतना ही देखना है. आणि तुम्हाला आता थोडासा वेळ होईल बरं काय म्हणताय, पण एक ती स्टोरी सांगतो तुम्हाला की कशासाठी आपण हे करायचं. तुझा प्रश्न खूप चांगला आहे बा. जब ये नीचे किला बांधा, त्याला पाचाड़चा किला म्हणतात. पाचाड़ बोल के गांव है, वो किले के नीचे है, वहां पर ये किला बांधा है. और शिवाजी महाराज ने अपना जो राजवाड़ा है ना, वो ऐसी जगह पे बांधा है कि वहां से ये घर दिखता है और इस घर से वो दिखता है. हाँ, सिचुएशन देखो, नीचे से उनको ये दिखेगा और वहां से इनको ये दिखेगा. वो जो किला बना है ना, उसका गेट, जो पाचाड़चा कोट है ना, त्याचा दरवाजा, उसका गेट बराबर इस डायरेक्शन में लगाया है कि वहां पे वो गेट के बाहर आने के बाद वहां पर एक तुलसी का बड़ा पेड़ लगाया. तुलसी वृंदावन था. और जैसे ही सवेरे जीजा माता अपना स्नान करने के बाद वो तुलसी को पानी देने के लिए आएगी, तो जैसे वो गेट खुलता था तो वहां पर एक 90 किलो की पितले की बहुत बड़ी घंटा होती थी. और जैसे ही वो दरवाजा खुलता ना, वहां का सेवक वो घंटा जोर से बजाता 3 बार. और शिवाजी महाराज को ये टाइम मालूम नहीं कि आज जीजा माता समझो लेट सोई, 7:30 बजे भी उठ सकती है, 8 बजे उठ सकती है, 6 बजे उठ सकती है. तो शिवाजी महाराज 6 बजे नहा के पूरा कपड़ा ड्रेसिंग विसिंग तैयार करके अपने सन को साथ में लेके, संभाजी राजे को साथ में लेके नहा धो के तैयार रहते थे. किस लिए? कि जैसे ही घंटा बजेगी तो ऊपर से वो नीचे देखते थे, और धुंधला सा एक चावल का दाना कैसे रहता है, इतनी ही उनकी माँ की मूर्ति उनको दिखती थी. जैसे ही घंटी बजती थी, वो घंटे की तरफ वो हाथ उठा के मुजरा करते थे, नमस्कार करते थे. उसके बाद तख्त पे जाके बैठते थे. जब तक वो जिंदा थी तब तक. और बता दो, मतलब इतना पैसा आने के बाद आदमी क्या कर सकता है. लेकिन जब अपनी मां स्नान के बाद तुलसी को पानी डालने के लिए आएगी, मेरे लिए सूरज कोई दूसरा नहीं है, मेरे लिए सूरज मेरी मां है. लेकिन अगर फॉग होगा, क्लाउडी एनवायरमेंट होगा, तो वो डिस्टेंस पे मुझे मेरी मां दिखेगी नहीं. तो इफ आई विल बी फेलिंग टू सी बाय द आईज, आई विल लिसन बाय द ears. दिस इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड टू वर्शिप द मदर. मां की पूजा करने के लिए साइंस का ये सहारा लिया है कि अगर रेनी सीजन होगा, फॉग होगा, तो मेरी मां को मैं देख नहीं पाऊंगा. उस टाइम में विजिबिलिटी थी 16 किलोमीटर्स की, और ये डिस्टेंस है ओनली 7 किलोमीटर्स. लेकिन फिर भी अगर इतने कम डिस्टेंस पे मैं उनको देख नहीं पाऊंगा, तो घंटा की जब नाद होगा, घंटा नाद होगा, तो इसका मतलब वो उस लोकेशन पे है. और मैं भले बीच में फॉग होगा, भले बीच में क्लाउड होगा, फिर भी मेरा इंटेंशन, मेरा डायरेक्शन क्लियर रहेगा. मैं मेरे माँ के दर्शन करूंगा और उसके बाद ही मैं तख्त पे बैठूंगा. ऐसा राजा दुनिया ने नहीं देखा क्या कि जिसने अपने मरते दम तक अपने माँ के पैर छुए और उसके बाद ही वो तख्त पे बैठा है. और आपको आगे बताता हूं, जब राज्याभिषेक हुआ शिवाजी महाराज का, बहुत सारा खर्चा हुआ, बहुत सारे दुनिया के लोग आए थे. लेकिन जिजाऊ को वो 1 दिन पहले ऊपर लेके आए थे, 15 दिन पहले नहीं लेके आए, क्योंकि अगर कुछ जल्दी लेके आते तो वापस उनकी हेल्थ खराब हो जाती थी. तो पहले दिन उनको लेके आए ऊपर. और जैसे ही शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, बाकी सारी फंक्शन हुई, लेकिन जब शिवाजी महाराज तख्त पे बैठे, उसके पहले उन्होंने जीजा माता के पैर छुए. और जैसे उन्होंने पैर छुए,
उन्होंने अपने हाथ में एक चीज लेके रखी थी, ऐसी मोर का पंखुड़ी थी, मोर का पंख था, और जैसे ही उनके मुकुट में उन्होंने डाल दिया, उसके बाद ही उनके ऊपर सोने की मोहरें गिरना शुरू हो गई। अब बताइए माँ को रिस्पेक्ट कितना देना चाहिए। आप ये जो फोटो देखते हैं ना शिवाजी महाराज का, हर एक फोटो, इसमें जो पीछे आपको लटकते हुए दिख रहा है ना ऊपर, वो मोर का पंख है जो उनकी माँ ने उसमें लगाया है। ये वो फोटो है। तो यही ऐसे शिवाजी बनाने के लिए पहले माँ बनानी चाहिए। और राजमाता जिजाऊ ज्ञान मंदिर का टारगेट ये है कि पहले हम हमारी माता है, हमारी बहनों को मजबूत करेंगे, और उनके पेट से जो बच्चे निकलेंगे वो मामूली नहीं होंगे, वो शिवाजी होंगे। इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम करेंगे। आप जब भी आएंगे आपके लिए हम सारी तैयारी, सारा बंदोबस्त करके देंगे। जैसे हेमा जी पिछले 2 दिन से खुद ड्राइव कर रही है, मुझे पूरा डेट्रॉइट घुमा रही है, वैसे आप वहां पर आएंगे, ना खाने की चिंता करनी है, ना घूमने की चिंता करनी है, और सिक्योरिटी की कोई चिंता आप करिए मत। जब हमारा नाम साथ में जुड़ जाता है तो हमने मुगलों को डिफीट किया है, तो बाकी की बात छोड़ दीजिए। इधर जी, तो वो सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है। और जितने लोग उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हाथ बटाना चाहते हैं, डेफिनेटली दे कैन कम अप विद दैट। ऐसे मैंने खुद तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये इसने सवाल पूछा, नहीं तो मैं पूरे भाषण में बोला नहीं था आपको कि इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, ऐसा ऐसा। देने वाले बहुत लोग होंगे, और ऊपर वाला उसी के लिए बैठा है, वो देने के लिए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मेरे को 400 करोड़ देने की पूरी संभावना है, उसकी आप चिंता मत करिए। आपने बोला मदर अर्थ मदर वगैरह, वो हाँ। वो डेफिनेशन। तो ये जो है ना, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में मैंने हिंदुइज्म को इस तरीके से प्रेजेंट किया है ना कि ताली बजाने के सिवाय उनके सामने कोई चारा ही नहीं था। मेरा स्पीच था 30 मिनट का, वो 55 मिनट पे चला गया। ठीक है, तो उसमें मैंने टू सम ऑफ द हिंदुइज्म एंड ह्यूमन राइट्स मैंने 3 लाइन बोली थी कि हिंदुइज्म इज नथिंग बट ओनली 3 वर्ड्स, मदर नेचर एंड मदर अर्थ। हिंदुइज्म का मतलब 3 ही वर्ड्स होते हैं, माँ का सम्मान करो, अपनी मातृभूमि का सम्मान करो, और धरती माता का सम्मान करो। बस यही हमारे धर्म की शिक्षा है। ऐसा मैंने वहां पर जो लोग तालियां बजाए। अब बहुत लोगों ने उसके बाद मुझे पूछा कि वो आप लाइव क्यों नहीं किए, वो फेसबुक पे क्यों नहीं डाला। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेशन दिया इंडिया से कि वो स्पीच की कॉस्ट है 150 करोड़ रुपया, आप ऐसे फोकट में क्यों देना चाहते किसी को। तो मैंने वो कंट्रोल किया है। पार्लियामेंट भी किसी को देने वाली नहीं, और मैं भी किसी को देने वाला नहीं। 30 साल के बाद वो फुटेज में रिलीज करूंगा मेरे ग्रैंडसन के हाथ से। क्योंकि I was talking to him, मैं इनके साथ बात कर रही थी, जैसे हमारे बच्चे सब चिन्मय मिशन में इंडिया जाते हैं, समर में 2-2 महीने का कोर्स करते हैं वहाँ। मैंने इनको विनंती की कि अगर आप भी ऐसे हमारे बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, अगर आप इंडिया में, महाराष्ट्र में अगर 15 दिन की रहने की, अगर 15 दिन रहने की अगर आप सुविधा करें तो हम भी वेकेशन लेके आ सकते। अल्टरनेट ईयर भी उनको सर्टिफिकेट दे दें बच्चों को। और यहाँ मराठी शाला है, हिंदी शाला है, उसमें अभी अपना भारत सरकार भी अगर शिवाजी महाराज की हिस्ट्री में चेंज करने वाले हैं। सो आई थिंक महाराष्ट्र विल गेट द मोस्ट प्रेफरेंस टू सेंड चिल्ड्रन वहाँ जाके एजुकेशन लेने के लिए। और ये बहुत अच्छा, और मैंने उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बताए हैं कि हाउ ही कैन डेवलप एंड ब्रिंग एज मेनी एज पीपल टू दैट 15 acre plus 150 acre that Modi ji is thinking about giving the land to him. But right now they have only 15 acre of where Jijamata used to stay, that for 27 years, and that's what he's part of Jijamata, 14th generation from her family. So yeah, thank you very much. Thank you very much for coming, and now बोलो आप चिंता मत करिए। आपको संस्कार के साथ अच्छे इंडियन कल्चर, अच्छा इंडियन खाना, ये सारा देने के बाद इतना इंस्पायर करेंगे बच्चों को कि आपका जो टेंशन है कि हमारे बच्चे कल्चर से लंबे हो रहे हैं, पैसे के पीछे से काम बिगड़ रहा है, हम पैसा भी कमाना सिखाएंगे और कल्चर को भी मेंटेन करना सिखाएंगे। और मैं तो खुद वहां पर खुद आपके साथ घूमने वाला हूं। क्या मैं कोई असिस्टेंट दूंगा नहीं, मैं खुद आपके साथ आऊंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है। और जब मेरे जैसे 4-5 बच्चे मैं तैयार करूंगा तो फिर मैं उनको ये हैंड ओवर करूंगा कि भाई अभी आप ये ए टीम देखो, बी टीम देखो, सी टीम देखो, ऐसा करेंगे। Yes, and then the money that whatever we are donating, that will be added to the maintenance of the forts that they are falling apart and all that. So that is what their purpose is going to be. And thank you very much for doing that.
before the thank you speech, and there are 2-3 small. आपण पुस्तक पण वापरायचं. दोन Small पुस्तक घेऊन या. speeches are coming. Thank you to Sunetra for making the tea and some team that was helping. There is lot of tea and samosas. Please stay behind. Like suppose even though the program is done, I know the young generation has to go tomorrow to the work. There will be a book opening the publication. Where is Avinash Rajmale? या अविनाश सर पुढे या. आणि तिथे टेबलावर 2-3 पुस्तक घेऊ आपण. विक्रांत 2-3 पुस्तक घ्या स्मॅपची. थँक यू व्हेरी मच फॉर इन्स्पिरेशनल स्पीच प्रोफेसर. आणि मनातनं माझ्या आता मी तिथं उभा आहे तेव्हापासून एकच वाक्य येत आहे जे मी खूप वेळ झालं थांबून ठेवलं स्वतःला. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी. आता छान वाटलं जरा. उमेशजींना यावर फक्त आणखीन एक फक्त सांगायचं है, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि हमने राजमाता जिजाऊ साहब उनको मतलब इन पर्सन देखा नहीं है, पर हमने उनकी 14 जनरेशन को देखा है. तो हम यही से आपको राजमाता और आदरणीय नामदेव राव जाधव साहब को प्रणाम करते हैं. थैंक यू. जय भवानी. Yes, thank you. I would like to invite Saili ji for a couple of announcements. Sorry to keep you waiting for that. There are a lot of books kept on the table in the entrance. Please go and buy this book. This book is called as Chhatrapati Shivaji Maharaj, the Management Guru, and you'll not get this. The content that is there inside is very valuable, and it is a very nominal price that we have to pay. This book gives you information about what are the works to be done by most successful managers in the world, along with information about 14 pearls as principles of management. So we all do management in some or the other way, inside the house, outside the house, in the workplace, everywhere. So please go and get the book and learn from our great legends, legendary Shivaji Maharaj. There are also the business cards that he has been brought that heavy weight here. So there is a website that you can go and donate some money in that one. Then there is a flyer or whatever 2-page flyer that whatever he spoke in Chicago is already there. Even though he is saying that it is not shared with so many people around the world, but that is there, that he spoke and half an hour people gave him time instead of like 10 minutes of speech. That's number one. So now I have a SMAP team, please raise your hands. So I just wanted Balaji Joshi, even though I was in India, Balaji Joshi, Saili, Mansukh, Pawar, Umesh, I met more than 20,000 people in this COVID and I am forgetting the names. Sudnesh is there. Who else is there that they helped? Even though I was in India, they did Shiva Chhatrapati Utsav, and just within 2 days, like how you came, like within a week we got the free hall and the food and all that. We had to stop the RSVP. 300 people showed up within just a week of the try, and then all these people helped even though I was in India. Thank you very much for SMAP team. And we will have more programs, not just Shivaji, but we will have many other legends that we will be celebrating for Jhansi Rani Lakshmibai, Ahilyabai, and many other legends. Thank you very much. You were saying something? Yeah? सचिन नकातेंना सत्कार करायचा आहे. Okay. Sachin Nakate from California. Okay. He is the right way from the California to attend this program. He was here as Wayne State University student, and from California he came to see his own city where he graduated from, and then you can go ahead. Yes, thank you. So before he will felicitate me, I will felicitate him. Photo, is anyone taking photo? Just one more. I don't know where is Avinash. He was going to get one. अविनाशला पण टोपी मिळणार होती. बोलवलं ना. I don't know where is he.
I don't know where is he, but thank you. So I have Brunda here. She's from Bangalore. When he told me that Shivaji Maharaj, when he was 5 years or 7 years, he went to Bangalore to study. So it reminded me Brunda. Brunda is here. She's a student at Wayne State University, and she's our adopted girl of many of us. Many of the Dynamic Women's Club helped her standing on her own feet. Thank you, Brunda, for coming with this. Yeah. She's from Bangalore. She's connected to now Shivaji Maharaj in my heart. Yeah, come here, Brunda. Yeah. ही तुम्हाला टोपी गणपतीत आणि प्रत्येक शिवजयंती वगैरे सगळ्या कार्यक्रमांना उपलब्ध होईल म्हणून मी आज परत कुठून शोधणार तुम्ही काय ह्याच्यावर माझं नाव वगैरे काय नाही बरं का तुम्हाला वाटतं ब्रँडिंग करतात स्वतःची आय हॅव नॉट मेन्शन माय नेम ओव्हर हियर. साई अरुणला कॉल करतेस का? तू घे ना तूच घे चालते. माझा जिजाऊ तुम्हीच आहे ना. मी हेमाताईंना जिजाऊ का म्हटलं माहितीये का आकाश आणि आदर्श आणि त्यांची मुलगी तिचं नाव काय या तिघांना घडवण्यासाठी जी काही मेहनत आहे बघा अविनाश सर त्यांच्या बिझनेस मध्ये बिझी असणार बरोबर पण ह्या तिघांना घडवण्याचं काम कोणी केलंय तर ह्या जिजाऊंनी केलेलं आहे त्यामुळे त्यांचा सत्कार होणं हे या अविनाश आले त्या आणि 3च मुलं नाही 4 कुत्रे अविनाश राजमळे साहेब आले तर कार्यक्रमात थोड़ा काही भूख वगैरह लगे मुझे वर गिरते तो वो वापस आए लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि क्या अभी आप मुझे टोपी पहनाने वाले हैं? आप बताइए जब भी किसी को टोपी पहनाने रहती है तो आदमी लोग उनको होटल में बुलाते हैं अंधेरे में बुलाते हैं गोपचे में बुलाते हैं ऐसे पब्लिक के सामने होता है क्या तो ये ऐसा नहीं होता है दिस इज ए फेलिशियन लेकिन हमारे मराठी में कहावत है क्या की आता टोपी घालूया बरं का तर त्याचे 2 अर्थ आहेत टोपी घालणे हा सन्मान पण आहे आणि टोपी घालणे बुडवणं पण आहे शेवटी कसं आहे आपण कुठल्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये काम करतोय तसं तर इथे तो सन्मान होणार आहे आणि याच्यामध्ये माझं नाव वगैरे काय नाही परत लिहिलं का आणि दुसरी गोष्ट याची काही प्राइस वगैरे ठेवलेली नाही आणि तुम्हाला माहिती आहे का ही टोपी म्हणजे काय भारताला स्वातंत्र्य मिळताना महात्मा गांधींनी जी गांधी टोपी ती गांधी टोपी आहे आणि त्याच्यावरती ओम आहे त्याच्यावर शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा आहे आणि तिथे एक वाक्य आहे मुद्रा भद्राय राजते सबका कल्याण हो सर्वे सुखीना संतु सर्वे संतु निरामय ये शॉर्टकट में उस पर लिखा है और कुछ नहीं आता स्मॅपचे सगळे मेंबरचा सत्कार करूया स्मॅपचे मेंबर सगळे या आणि मग ते इथेच थांबतील आणि मग बुक पब्लिक शेअर विल बी Come on, everybody, come on the stage here. Balaji, me पण या स्मॅप वाले सगळे या आणखी देऊ का हां लागले तर ना सीमा सायनी लवकर या ह्या चहा चांगला बनवतात बरं का गेले तर अद्रकची चाय बनवते बढिया या इथून सुरुवात करू हे तुम्हाला गणपती वगैरे नावाने फोटो बालाजी कोणीतरी फोटो काढा व्हिडिओ आणि फोटो व्हिडिओ तर काढून आलाय व्हिडिओ काढून आलाय हे हा लागणार ना हो स्वतःला टोपी घालते दुसऱ्याला घालता येत म्हणजे
म्हणजे फेटा बांधायला इथं माणूस भेटत नाही. मी असा फेटा म्हणून आणलाय की जो कुठेही मला घालता येईल पण नाही हे असं रेडीमेड केलेलं आहे. इझी इझी Excuse me, can you stand together? Give me, let me stop it. 1 minute. व्हिडिओ